owners, D2C owners, drop shippers, social media managers, performance marketers, coaches and consultants, small business owners, large business owners, and affiliate marketers. So if you fall under any of these categories, then you should stay here. If not, I don't think that this will make sense, right? And let's address the elephant in the room. Am I going to sell you something? Because obviously, because you guys are marketer, a lot of webinars workshops you guys have attended, right? And you must be thinking, कि विशाल कुछ बेचेगा यहाँ पे, right? And the answer is yes, going to sell you something, but don't let thought stop you from learning, right? I'll be very honest with you. I'm about to sell you something, I'll be very honest, and then you can decide whether you want to be a part of it or not, right? But जब तक वो नहीं है selling वाला phase, you can stay till the end, learn new things, implement for your brand, your client's brand, and see how it's going to impact, right? So that is it. So coming back to this, if you have struggled to scale your e-commerce brand, it's not your fault, guys, right? The real reason your growth is stuck that you've been chasing tactics, not system. Tell me who all are looking out for those reels, those hidden strategies. कि there are a lot of people who post short form content कि कोई एक ऐसी hidden strategy मिल जाए कि किस हिसाब से अकाउंट को स्ट्रक्चर करना है, कोई hidden targeting मिल जाए, कोई hidden strategy मिल जाए, कोई ऐसे अगर गूगल एड्स रन कर रहे हैं तो दे ट्राई फॉर हिडन कीवर्ड्स मिल जाए कोई ऐसे जहाँ पे कंपटीशन कम है. सो हाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव डन दैट? आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव डन दैट बिकॉज व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आई यूज्ड टू डू दिस कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा हिडन चीजें देख पाऊँ, कोई एक ऐसी ट्रिक मिल जाए, कोई ऐसा कोई हैक मिल जाए जिससे मेरा ब्रांड ग्रो हो जाए, बट अल्टीमेटली इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? And the real enemy that's keeping your brand stuck is because you're using the outdated thinking that holds you back, right? Old tactics as in people, what I used to do basically, कि YouTube पे जाके I used to search how to scale campaigns, how to optimize campaigns, and trust me, everyone knows that कि 20% से बजट बढ़ा दो, 20% से बजट कम कर दो, जो इस पे ROAS नहीं आ रहा उसको बंद कर दो. That's everyone knows, right? But उससे you're not able to scale your brand to 1 CR a month, really. अगर if you're already doing 1 CR a month तो आप यहाँ पे नहीं होते, right? So this is the old tactics which everyone is using, and they keep getting stuck in the same loop. And yeah, fear of investing in marketing, because obviously you guys have tried your hand, चाहे वो client का project हो, चाहे वो अगर आप खुद का brand हो, आप start करने की सोच रहे हो, then you'll be going through the same journey. YouTube पे search किया, you'll try to implement it, but there is a fear, there is a skeptical mindset कि व्हाट इफ पैसे लगा रहे हैं फेसबुक को, हम दे तो रहे हैं, हम लेते हैं 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, हम डेली का स्पेंड कर रहे हैं, एंड सेल्स उस हिसाब से नहीं आ रही है, राइट? बिकॉज रोआस उस हिसाब से नहीं आ रहा है, तो ग्रोथ तो बात की चीज है ना. एंड बिकॉज ऑफ पास्ट फेलियर्स दैट इज कीपिंग यू स्टक. So these are the two things that which I have found, right? So before diving into the webinar and everything, right, you guys must have the question that who am I? I know you have seen the ad about the sales funnel breakdowns, that how big brands are doing a lot of stuff. But the question is how I have cracked it. I mean, the sales funnel breakdowns, what made me to dissect the sales funnel breakdowns of each and every brand out there, right? So let me just address who am I. So that's me. That's my name is Vishal, and I'm the founder of the Growth Flow and Performance Solutions. So that's my LinkedIn profile. So I post crazy content out there which helped me grow to close to 10,000 followers. And by far, we are in the industry for more than 3.5 years, work with more than 120 plus, I guess 150 plus over here. And we are also working with a Shark Tank brand name because you can't reveal it obviously due to NDA. And you can also visit our website to find a lot of stuff about us. These are the couple of the brands that we have worked with. I'm sure that being a marketer, you know Sanidhya Baveja as well, right? So he's a Facebook ads expert with close to 82,000 followers in the online space. Everyone knows of him, right? If you run Facebook ad, you must be knowing him, right? So he has his own course as well. So he gave us a review as well. Plus, we have some crazy podcast that how to grow your business. That's a free content on YouTube. You just search thegrowthflow.com on the YouTube and you'll find it. That's this is the recent podcast that we did with one of our clients. Client name is Sayam, and brand name is basically Jolfest. So he did close to 8 figures in just 20 days,
and we have reviewed some of the crazy strategies that we have used in terms of funnel hacking, design कैसे करना है, strategies कैसे बनानी है, ये सारी चीजें, right? So these are things that we did. So you can find both the podcasts onto our YouTube channel, right? These are the couple of brands. Brands are very, the list is very ongoing, so yeah, just added few. Talking about the results, that why you should trust us, right? So you'll see, this is the one of the, because you're a marketer, you must be knowing Google Analytics. So as you can see, 25 CR in last 12 months, that is close to 2 CR plus per month. You can see this is the item revenue, number of items purchased, and what all items being sold, right? 1.62 CR in 1 month. This is my Shopify dashboard, right? So this is 6 CR in 9 months. Some of the detailed results, as you can see, direct traffic, crazy money, social search, unknown, email. People who think that email doesn't provide good source of revenue, it does actually 38,000 from just the email source, right? Coming back to this, 1.3 CR in 7 months, one of the brands. I guess this is about selling D2C brand selling watches or something. Some of the more results, but I don't want you to fall for this, right? Because I know a lot of people just show the results and try to sell you courses and everything. That's not it, right? And you might be thinking, but the question is, I don't know you, right? I don't know you, your business, your experiences, right? And you should be guarded with my sentences because I am me, I'm not you, right? But I want you to keep everything aside. Whatever you're doing, just keep everything aside. And I want you to put on your imagination hat. Let's say if you are running or managing the campaigns for your clients, right? Or if you want to start a e-com brand, or if you're already running an e-com brand which is not profitable or doing sustainable business, right? Just let everything stay there. And I want you to imagine this. Let's say tomorrow, 9 a.m., you open your Shopify store and you get 10 orders. Just imagine this, 10 orders. If you are running the ads for your client business, if you're starting an e-commerce brand, tomorrow you started running ads today, and tomorrow 9 a.m., you get 10 orders, right? What could you do with 10 customers every day for the whole year? This means if you're getting 10 customers every day, just 10 customers, right? Think about that. Now, what if the orders are doubled as 20 orders every day for the whole year? Just think about that. That you're getting 20 orders each day for the whole year. What would your business look like then? Now, what if the order doesn't come 20 per day, but 50 per day? 50 orders per day for the whole year. What if that's not 50, that's 80 per day? 80 orders per day for your client's business, for your own e-commerce brand. If you're already running the brand but not able to grow it, just imagine 80 orders per day. Now, what if that's not 80, that's 100 orders per day? What would your business look like then? 100 orders per day for the whole year. This means 100 new customers for the every day for the whole year. What would your business look like then? Do you think that is possible just through meta ads, or do you think meta ads won't work? Google ads, we need to add Google ads, we need to add email, we need to do a lot of things, all the shiny object. But this can be done. 100 orders per day can be done. But before coming on to this, who all thinks that Facebook ads don't work in 2025 to grow a brand to 1 CR? So this is something that we're gonna be addressing in this webinar. So if you think that Facebook ads don't work, if you think it works but it is not able to help you to grow your brand to 1 CR, right? I'm gonna break that belief, right? Before coming on to everything, I know because you guys are here, right? I know you have seen a lot of ads of the agency owners, marketers, coaches, course creators that this is the hidden strategy. If you'll implement this, you'll get 10x ROAS, 15x ROAS, 20x ROAS, right? A lot of e-commerce brand owners must be here, right? Have you fallen for that trap key? When you go on a discovery call with one of the agencies, they'll show you dashboards. You see, we have generated 5x, 10x, 20x ROAS, and we can do it same for you. And what happens? You fall for the trap. You start buying those
emotional decisions that okay 20x ROAS तो आ ही सकता है. But do you think that 20x ROAS is something that you need to grow your brand to once a month? Or back of the mind, because obviously as a homo sapiens, as being a human being, we know that people can sniff it out, right? कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है. If that is possible, 20x ROAS by that hidden strategies or by that overpriced gurus, do you think they will sell it to you, or do you think that they will do it for themselves, right? So we're gonna break that belief that Facebook ads don't work. We're gonna address this thing that how you can use Facebook ads to grow your e-commerce brand or your client's e-commerce brand to 1 CR a month, right? How can you have 100 orders per day, and how you have to don't fall for that crap, that 20x 30x loss. Because once you know what is that number, I don't need to fall for that thing. Because I've learned this from Alex Hormozy, that he says if you want to sell dreams, sell it to the poor people. And if you are buying that 20x 30x ROAS, you are not the businessman then, right? And everyone who wants to start their business, this is what you need to start looking for. 20x 30x ROAS won't help you to grow your business. You need to have a sustainable number, because business is a long term game. It's not a get quick scheme, right? So yeah, by just using Facebook ads, if you know these three secrets which I'll be revealing today in this webinar, you can grow your brand to 1 CR a month with just putting 4 hours a week. Yes, I'm not saying that Facebook ads say you have to spend whole day, 15 hours, 18 days, 18 hours a day. Well, I was doing it when I was starting it. तो उतना करने की जरूरत तो नहीं है. बट या 4 hours a week, once you have a stable flow, कि consistent आपके पास सारी चीजें आ रही है, एज इन आपका ads are stable, your social media is stable, your SEO is stable. So you just need to deploy 4 hours a week. That's it. If you can do this, then obviously Facebook ads will help you to achieve that 1 CR mark, right? So, but the question is, how did I able to discover this? कि सिर्फ 4 घंटे हफ्ते के लगा के you can scale it to 1 CR a month. So technically, to be honest, it was never like this, right? Back in 2021, that's me, by the way. That's me in 2021 when I was doing my internship. थोड़ा सा अलग लगाऊंगा. So yeah, it was never like this. Back in 2021, when I was just an intern at an advertising agency. So I was excited to work on my first brand, right? So marketing agency रही थी वहाँ पे, and they told me, "कि Vishal, this is a brand. This is a luxury footwear brand. They are doing close to 10 lakhs a month. So they were running Facebook ads, Google ads, थोड़ा social media भी करते थे ऐसा, and वहाँ पे influencer campaign भी करने की कोशिश कर रहे थे, but they were doing decently. Shopify पे 10 लाख रुपए महीने आ रहे थे, right? And their goal was to scale to 1 CR a month, and they have the same fantasy कि 10x 20x ROAS मिल जाए क्योंकि हमारे competitors को मिल रहा है. And I am sure that you guys can also relate. People who are marketers, people who are brand owners, they come up with this thing, right? कि 1 CR month हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और एटलीस्ट 20x 10x ROAS को मिल जाए, right? And other brands are doing crazy numbers, but not mine. हम 10 लाख रुपए महीना कर रहे हैं, हम 3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं. Why it's just 3x? Why not more, right? And that time my approach was like what I should be doing, because I was an intern. I was having one of the people out there जो senior थे मेरे. They were managing good brands, right? So what I did as an intern, I started researching. YouTube पे गया, blogs पढ़े, LinkedIn पे चीजें ढूंढी, right? And I thought everyone was talking about more creatives. ज़्यादा campaigns बनाओ, ज़्यादा creatives बनाओ, right? नए नए एड्स चालू करो, नए नए चैनल्स को ऐड करो. पीपल थिंक दैट गूगल एड्स ऐड कर देंगे तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ईमेल ऐड कर देंगे रेवेन्यू बढ़ जाएगा, राइट? सो सेम थिंग, आई डिड द सेम थिंग, ये सारी चीजें करने लग गया. बट व्हाट रियली हैपेंड वाज नथिंग वर्कड आउट, राइट? सारी चीजें करने के बाद भी रोआस वाज सेम, 3.5 3.5 3.2 समथिंग लाइक दिस. कुछ नहीं हो रहा था, राइट? एंड आई रियलाइज्ड आई वाज स्टक इन अ लूप, spending hours learning from, I mean, उस टाइम तो I was working 18 hours a day or something. ये ऑफिस में भी काम कर रहा हूँ, घर आके भी पढ़ रहा हूँ, because obviously क्लाइंट ने बोला है कि उसको 10x चाहिए तो 10x deliver करना है. I was stuck in this, right? So I realized कि this is a loop. I was spending hours learning from YouTube, testing random strategies,
कोई इंस्टाग्राम पे कोई रील आ जाती थी, अच्छा दिस इज अ हिडन स्ट्रैटेजी, दिस इज अ हिडन अकाउंट स्ट्रक्चर, इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, सारी चीज करके देखता था, राइट। एंड आई वाज होपिंग कि कहीं कहीं से कुछ ना कुछ तो क्रैक हो जाए, रोआस बढ़ जाए 3.2 से किसी तरह 5 हो जाए, एक आध दिन हो भी जाता था। आई वोंट लाइक कुछ कुछ स्ट्रैटेजी से एक आध दिन हो जाता था, बट इट वोंट सस्टेन, एक आध दिन बाद वो डेड ही हो जाते थे। एंड आई थॉट कि दिस इज नॉट सस्टेनेबल, आई एम नॉट श्योर हाउ अदर ब्रांड्स आर डूइंग, राइट। एंड सडनली आई a lot of firefighting happened close to 2 months. 2 months मेरे को लगा ये सारी चीजें करने पे। I still remember that day. It was Friday. Friday को everyone was about to leave for the weekends, and 5 बजे के time there was a team meeting. So everyone was in the conference room. कुछ seniors थे, मैं भी वहाँ पे बैठा था, right? And everyone was discussing about the projects कि it's a long weekend. What are we gonna do about the brands जो अच्छे perform नहीं कर रहे हैं, जो अच्छे perform कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या करना है, right? So I was in the conference room. 5 बज रहे थे, सारी चीजें चल रही थी. Everyone was talking about their brand. Then it came on to my point, right? And then I told them this, I am trying everything. ये सारी चीजें मैंने ट्राई कर ली और कुछ भी नहीं हो रहा है, right? Then there was this person beside me. So he was a very senior person, काफी टाइम से इंडस्ट्री में थे. His name is Manikant. So you can find him on the LinkedIn as well. Right? He was right beside me, sitting there, right? And when his turn came, he told that our brand is doing decent. एक तरफ जो मेरा पास ब्रांड था वो सिर्फ 10 लाख रुपए मंथ कर रहा था, राइट, स्पेंडिंग 3 lakhs or something. And then when it came मणिकांत सर की टर्न, सर बोलता हूँ उनको, सो ही टोल्ड कि एक ब्रांड है, साड़ी का ब्रांड है, वुमेन एथनिक वेयर है, can't name the brand. So currently they are doing 5 CR a month. And मैंने पूछा सर रोआस क्या आ रहा है आपका, कह रहे हैं रोआस इज 2.25. 2.25, मेरा 3.2 आ रहा है सर, और मैं 10x करने के पीछे लगा पड़ा हूँ. what made you to do 2.25 and you're able to do 5 CR a month? मैंने पूछा कि सर आपको टाइम कितना लगता है इसको मैनेज मैनेज करने में, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अगर 10 लाख रुपए की सेल्स लाने के लिए 3.2 के रोएस पे मैं लगा हुआ हूँ पूरे पूरे दिन, तो आई एम श्योर सर आपके पास जो टीम है वो तो पूरे पूरे दिन लगी रहती होगी और आप ही लगे रहते होगे 5 CR मंथ करने के लिए. एंड ही टोल्ड मी वी शुड जस्ट 4 hours. आई वाज लाइक, मेरे को बताया ही नहीं किसी ने कि 4 hours a week लगा के भी इतनी सारी चीजें हो जाती हैं. एंड आई वाज सरप्राइज, दैट वाज माय मोमेंट कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ. और ये जो बड़े ब्रांड्स हैं जो 5 CR a month कर रहे हैं, आई एम श्योर देयर आर ब्रांड्स हु आर डूइंग 10 CR a month as well, right? So what are they doing differently? So he told me there is a system that how he approached the brands, how in terms of scaling. क्योंकि अगर आपको बड़े नंबर्स करने हैं, you can't hope for कि मेरे को 10x 20x ROAS आएगा, right? And he told me कि first thing he told me that you don't need 10x 20x ROAS, you don't need 5x, you don't need 3x. If you know your break-even ROAS, if you know your break-even ROAS, then you can scale to infinity. ये अगर आपको पता लग जाए, for it's like if you know at what point I'll not make money or not lose money, that is the point I can scale to infinity. Because once you have a customer, you can keep on selling it to them, right? So whole objective of running a Facebook ad is just to get customers, and rest of the channels it's like आप उनको बार बार बेच सकते हो, right? So we need to identify what everyone was doing, which I was doing back in 2023, 2021, that मैं सिर्फ नए customers को लेके आने की कोशिश कर रहा था. But the whole point for D2C is to have the existing customers buy again and again, right? So first thing was break-even loss, that I have to know कि break-even loss कितना है मेरा. Second, he told me it's all about the sales funnel. That if you're not able to track the right metrics, अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन से मेट्रिक, इट्स नॉट अबाउट द रोआस, बिकॉज़ रोआस जो बनी है कैलकुलेशन से, देयर आर 4 डिफरेंट मेट्रिक्स जिससे बनी है रोआस. इफ यू जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट रोआस, वो तो एंड रिजल्ट है, बट उस एंड रिजल्ट को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है. इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दोस 4 मेट्रिक्स, हमेशा कुछ ना कुछ होगा हर दिन, किसी दिन परफॉर्मेंस गिरेगी, किसी दिन परफॉर्मेंस उठेगी, एंड यू विल बी लाइक मेरे को पता ही नहीं है क्या करना है. मे बी you're just launching new ads, maybe you're just pausing the ads which were profitable. So जब तक आपको 4 चीजें नहीं पता होंगी तब तक nothing will happen, right? And last thing he told me that Vishal, more ads doesn't mean more growth. You need the right reporting, tracking, optimizing and everything. लोगों को लगता है कि ज्यादा ज्यादा ads बनाएंगे, जितनी ज्यादा ad उतनी ज्यादा growth. That's not how it works,
राइट. सो दैट वाज माय मोमेंट व्हेन आई रियलाइज कि ये तीन चीजें मेरे को जाननी बहुत जरूरी है, राइट. एंड दैट सिस्टम changed everything, which helped me because that brand was doing close to 10 lakhs a month. जब मेरे को सारी चीजें पता लगी, I started working on to that. कि ब्रेक इवन रॉस निकाला, बहुत सारी चीजें ऐड करनी छोड़ दी, राइट मेट्रिक्स को पकड़ा, उसको ऑप्टिमाइज पे करने पे काम किया, एंड लास्ट में इट्स ऑल अबाउट द रिपोर्टिंग कि कैसे मेरे को कम से कम टाइम लगा के आई कैन हैंडल मल्टीपल ब्रांड्स, which resulted in that 1.62 CR revenue with just 17 lakhs of ad spend. And this is what I have learned. Three scaling levers. ये right ROAS strategy क्या है, right metrics क्या है, and कुछ playbooks, कुछ automations add करके how can I manage the campaign in just 10 minutes a day. So this is what I have learned over the period of time, right? All right. Now it comes to the what are those three strategies जो मैंने सीखी थी उस time back in my internship days, और उसको सेम चीज लगा के the result that I have shown you अभी recently कि क्या क्या मैंने किया है अभी तक, कौन कौन से रिजल्ट से that 6 CR 24 CR and everything, right? I'm still using the same strategies. The question is, what are those three strategies? Strategy number one is basically the 1 CR ad illusion. So this is something, well, why most e-commerce brands are scaling the wrong way and bleeding money without even realizing it, right? So people tends to think that कि वो 1 करोड़ रुपए करने के लिए वो स्केल कर रहे हैं, पैसे लगाए जा रहे हैं, but they are not able to identify. Even जो funded companies होती हैं कि पैसे तो लगा देते हैं, but they don't know what is their break-even loss, right? Strategy number two is the Facebook ads apocalypse. Why your ads are dying and the four metrics that will bring them back to life and make them profitable again. I'll be talking about these four metrics जो मैंने वहाँ पे सीखी थी back in my days कि बस ये चार metrics पता लगने के बाद you can easily manage any campaign, चाहे वो e-commerce हो, चाहे वो lead generation हो, any campaign out there, right? Strategy number three is the 1 CR shortcut. How smart e-commerce brands scale without wasting money on bad ads, useless agencies, or overpriced gurus. So I'm gonna be talking about these things. So I want you to be ready because this is not just I'm gonna talk and talk, right? मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे करवाने भी वाला हूँ. So at the end of this workshop, you'll be able to figure out, अच्छा, this is something which I have learned from Vishal, right? So right, so that is strategy number one. So अभी तक you have a clear idea, right? That you don't have to look out for 5x, 10x, 20x ROAS, right? कोई hidden strategy नहीं ढूंढनी है, कोई account structuring नहीं ढूंढनी है, all that bullshit, right? You don't need that. कि actually में करना कैसा है? I want to tell you about the break-even ROAS strategy, right? How do we figure out कि break-even ROAS निकालते कैसे हैं? And उस टाइम मेरे को पता तो लग गया था बैक इन माय इंटर्नशिप डेज कि break-even ROAS निकालते कैसे हैं, बट दिस वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज कि यार ये ना सबको पता होना चाहिए. सो this was a perfume and a body wash brand, D2C brand था, and it was around 2023 दिसंबर की बात है, right? So by the way, I told that LinkedIn से भी काफी clients आते हैं हमारे पास, right? So someone registered for a one-to-one call with me, and he came on a call and he told Vishal ji, I need 6x ROAS minimum, 10x आ जाए तो अच्छा ही है. So and I was like ठीक है, and and he was like बाकी competitors के ना आ रहे हैं and we have a secret information कि पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता कि ये जितने ब्रांड ओनर्स हैं, नो 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 हार्ड फीलिंग, नो ऑफेंस, इट्स जस्ट कि पता नहीं उनके पास कॉम्पिटिटर का डेटा कहाँ से आता है. सो दिस गाय ही वाज लाइक कि विशाल जी हमारे पास ना कॉम्पिटिटर का डेटा भी है, वी हैव अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन कि बाकी एजेंसी प्रॉमिस कर रही है कि 10x ROAS तो आ ही जाएगा, मनी बैक गारंटी भी दे रहे हैं, राइट? आई आस्क्ड हिम, व्हाई डू यू नीड 6x ROAS? मेरा पहला पहला क्वेश्चन था, बिकॉज आई रिमेंबर इन माय बैक इन माय डेज कि ब्रेक इवन ROAS चाहिए होता है, बट आई वाज लाइक व्हाई डू यू नीड 6x ROAS? is that is that much easy? Is it people who are claiming and guarantee कि आ जाएगा, right? एजेंसीज आजकल बहुत सारी एड्स देखी होंगी आप लोगों ने, फिर ओनर, बड़ा D2C ब्रांड ओनर, दे विल से कि हाँ आ जाएगा, 10x ROAS आ जाएगा तो विल गिव योर मनी बैक गारंटी है, राइट? 6x ROAS आ जाएगा तो मनी बैक गारंटी है, हमने इस ब्रांड के लिए इतना जनरेट किया है तो बस मनी बैक गारंटी है, राइट? बट द क्वेश्चन इज व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स. अगर 10x आ रहा है मींस 1000 रुपए लगा के 10,000 रुपए बन रहे हैं, why they are not doing it for themselves? Money back guarantee अपने पास क्यों नहीं रखते हैं वो लोग? He took a pause actually. He was in that thinking zone कि सोच तो रहे थे कि मतलब कि क्या करना है, बात तो सही है
कि अगर 6x रोआस इतनी इजीली आ जाएगा, 10x आ जाएगा, गारंटी भी अटैच्ड है, सो एजेंसी क्यों चला रहे हो? व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स? बट ऑब्वियसली एज everyone wants to be very emotionally decisive, right? He still went on with the emotional decision and he still chose that agency. कि ठीक है, गारंटी तो है ना, पैसे तो वापस आ ही जाएंगे, बट एज एन entrepreneur you need to save your time, right? As an entrepreneur you need to save your time. मैंने लिखा हुआ अपने लिए, बट दिस पर्सन ही वाज लाइक ठीक है, मनी बैक गारंटी, पैसे बच जाएंगे अगर नहीं आया, नहीं आया, एक गैम्बल खेल लेते हैं. He went with it and after 3 months he came back. कॉल आया खुद से कि विशाल जी एक मीटिंग कर लेते हैं. मैंने बताया हाँ जी बताइए. तो जब मीटिंग मीटिंग हुई एंड ही वाज लाइक विशाल जी पहले ना 3x तो रोआस आ रहा था, 6x उन्होंने प्रॉमिस किया था, मनी बैक गारंटी दी, तो मनी बैक गारंटी तो मिल गई, पैसे तो वापस आ गए, बट जो रोआस था वो डिप हो गया. मैंने कहा कितना डिप हो गया? कि पहले 3x था, अभी 1.85 कर रहे हैं. मैंने कहा 1.85 कर रहे हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 50% डाउन, 50% के आसपास डाउन है. मैंने कहा तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? बट पैसे तो बच गए ना. कह रहे पैसे बच गए लेकिन टाइम तो चला गया. मैंने कहा सेम चीज तो मैंने आपको पहले भी कही थी 3 महीने पहले. एंड देन ही रियलाइज्ड कि पीपल हु गिव क्रेजी गारंटीज, राइट, बहुत सारी एड्स आती हैं, सो आई एम श्योर आफ्टर अटेंडिंग दिस वेबिनार यू विल नॉट बी फॉलोइंग फॉर दैट ट्रैप, राइट? कि पीपल हु गिव क्रेजी गारंटीज, they just want to onboard clients by triggering their emotional brain side. They don't have experience, they don't know what they are saying. If they know what they are saying, they can do it for themselves. They will not use this sell by hook or crook, right? So that time came on a call. I explained him, you don't need to fall for this. You don't need 6x to us. I'll be giving you a method कि पहले तो आपका जो 1.85 है इसको पहले वापस 3x करेंगे. We'll give you a road map कि 6 months में how we can help you to see कैसे आपको 1 CR करना है, कैसे आपको ज्यादा नंबर्स करना है, राइट? सो 6 months का रोड मैप दिया. वी गेव हिम द नंबर कि किस हिसाब से आपको ब्रेक इवन लॉस निकालना है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट. So this is a break-even ROAS calculator that we talk, right? So I'll be sharing this calculator with you. So people who are here this webinar, I'm gonna share this link in the chat, right? I want you to make a copy of this. Okay, just make a copy of it. Wait, I'll explain how you have to use this calculator. Calculator लिखा है, spelling mistake है. I'll be talking to the team as well कि spelling mistake कर रखी है, ठीक है? So I'll be explaining कैसे use करना है calculator. I want you to use this calculator and help me with your numbers, right? You have to write down in the chat कि किस हिसाब से you're actually using these numbers, ठीक है? Just give me a sec. By the way, guys, अभी तक how many people are there in the chat? 32. Crazy. Uh, ठीक है. Just give me a sec. Break even calculator. All right. So I'm gonna paste this thing in the chat. Okay. Just make a copy of it. Just make a copy of it. I'll be sharing my screen. I'll be explaining things, and I want you to test this on your own, right? Just make a just make a copy of it. I'm gonna take a while, drink some water, make a copy of it, and I'm gonna explain. All right. Shall we start? Yeah. So, can you see my screen? I'm sure you can. All right. So, point here, कि this person who came back after 3 months, he was generating 1.85, and he promised कि 6 months का road map है. You need to scale. You can't run behind 6x ROAS. You need to get your break even ROAS. कि किस point पे you're not making money, not losing money,
विल बी ओनली फोकसिंग ऑन कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स एक्वायर करें विदाउट लूजिंग द मनी, राइट। ये पॉइंट निकालना है कि किस पॉइंट पे विल गेट कस्टमर्स फॉर फ्री। So that is why we have something known as first order economics. And I want you to, if you're a business owner, if you're an e-commerce brand, if you're running ads for your clients, this is what you have to do. You have to ask first thing from the client, or if you're an owner, what is your average order value, right? You can see ये जो color वाले boxes हैं, इसी में हमें changes करने हैं. You can't do changes in any of this stuff, right? So first question that we have to ask, that is, what is your average order value? So considering he was into the body wash and skincare brand, 1200 रुपए के आसपास इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू था, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा 1200. लेट्स इन योर केस आई विल अज्यूम लेट्स से दैट इज जस्ट 800 रुपीज, ठीक है। 800 rupees is the average order value. Now everyone must be giving some discounts as well, right? So I'm going to take it very slow, right? I'm going to explain it twice. If you think कि कोई doubt है, you can ask questions. We'll keep the chat on, ठीक है। Next is 10% discount. Most of the brands देते ही देते, ठीक है। So we just have to add 10% discount, right? So ये 10% मिल जाएगा यहाँ से कि 800 का 10% है 80 रुपए. Next is what is the selling price? This becomes the selling price. Now nobody asks the question to the brand owner. If you're an agency, if you're a marketer, nobody asks what is your COGS percentage. यानी कि for a layman, for in a simple language, how much money you're spending to actually make that product. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, वेरी सिंपल. लेट्स अज्यूम 30%. ठीक है, दिस इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी. आई एम नॉट गोना गेट इनटू दैट टेक्निकल वर्ड. सिंपल कि 30% के आसपास उसको बनाने का खर्चा आया, ठीक है। तो यहाँ पे 30% डाला हमने, तो दैट कम्स आउट टू बी 240 रुपीज. अब लेट्स से इफ आई डू दैट इज 50%, बिकॉज बहुत सारे टी शर्ट ब्रांड्स होते हैं जो प्रोडक्ट को आउटसोर्स करते हैं. समटाइम्स देयर कॉस्ट गोज अप, तो यू विल नोटिस 400 रुपए की कॉस्ट होगी, बट गुड साइज इज 30%, ठीक है. I'll be also explaining एक side table, I'll be explaining that as well कि what is the upper limit, what is the lower limit, किस लेवल पे आप उसको यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है. सो अभी वापस चलते हैं. आई होप यू हैव मेड अ कॉपी ऑफ दिस. जस्ट पुट योर एवरेज ऑर्डर वैल्यू. इफ यू आर एन ओनर, आप अपने शॉपिफाई से डेटा देख सकते हो, एनालिटिक्स से डेटा देख सकते हो. एंड इफ यू आर अ मार्केटर, यू कैन चेक आउट ऑफ योर क्लाइंट्स. जस्ट पुट योर एवरेज ऑर्डर वैल्यू. कितना परसेंट वो डिस्काउंट देते हैं, यूजुअली 10% होता है, राइट. What is the COGS percentage? You might not be aware of this if you are running ads for your clients, but you can ask this question maybe tomorrow or after this webinar. ठीक है, 30% is the COGS. Tax is usually 18%. 18% में selling price पे tax लगा दिया. This is the gross margin. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि what is the gross margin. अभी के लिए just put 30%. अभी मान लेते हैं 30% दिया रहा है आपको, ठीक है. So gross margin is how much money is left after subtracting the बनाने का, after subtracting the. Please share link again. अमित, just give me a sec. मैं इसको फिर से नोट कैन पेज. अच्छा ठीक है, लेट मी जस्ट पेस्ट इट इन द चार्ट. ठीक है, आई हैव पेस्टेड इन द चार्ट वंस अगेन. ऑलराइट, सो ये लिख जाएगा ग्रॉस मार्जिन, राइट. मोस्ट वेलकम. थैंक्स आगा, थैंक्स फॉर शेयरिंग द लिंक. ठीक है, सो ये आ जाता है आपको ग्रॉस मार्जिन. नाउ बिकॉज यू आर रनिंग द एड्स, यू नीड टू पे सम अमाउंट टू द फेसबुक एज वेल, राइट ना. फेसबुक को पैसे देने, गूगल को पैसे देने. तो गुड मार्जिन इज अराउंड 30%. We could expect we can get 30% of the MRP to acquire one customer. So this comes out to be 240 rupees. Means आपका customer acquisition cost 30% हो सकता है. किसी किसी केस में लोगों का 50% चले जाता है. So you'll notice कि 400 रुपए का cost acquisition जा रहा है. I'll assume 30% का ही है. Okay? जब ऑर्डर आता है उसके बाद what happens next? This is basically the journey. You'll notice. Next क्या होता है? Packaging. ऑर्डर आ गया, फेसबुक को पैसे दे दिए हमने, प्रोडक्ट बन के रेडी है, टैग वगैरह सब पे कर दिया हमने. नाउ इट बॉइल्स डाउन टू द पैकेजिंग. पैकेजिंग की कॉस्ट कितनी है? लेट्स से 3%, 24 रुपए की पैकेजिंग होगी. अब शिप रॉकेट है, बहुत सारी चीजें हैं, पेमेंट गेटवेज है, शॉपिफाई है, राइट. दे टेक 2%, 16 रुपए वहां लग गए. दिस इज द नेट मार्जिन. 10% इज द मनी लेफ्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग एवरीथिंग. अब मैं इसके अंदर, आई नो डेट स्टॉक होता है, देन देयर इज ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज होती है,
आई वोंट गेट इनटू दिस, अदरवाइज ये 1-2 रुपए बचेंगे, बट स्टिल ये ऑन अ मार्केटिंग लेवल पे है, ठीक है। ब्रांड लेवल पे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू, बट दिस इज ऑन अ मार्केटिंग लेवल कि 10% इज द मार्जिन विच इज लेफ्ट। मीन्स उस ब्रांड के लिए एक ऑर्डर लाने पे अगर 240 रुपए का एक ऑर्डर आता है तो 70 रुपए बचते हैं एज अ प्रॉफिट, राइट। तो दिस इज द रोआस दैट दे आर गेटिंग अगर 240 में ऑर्डर आता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लगा रखा है हमने। दिस मीन्स 2.6 इज द ब्रेक इवन रोआस। दे वर गेटिंग 3x पहले, 1.85 उनका हो गया था किसी गारंटी वाली एजेंसी का काम करके, एंड वी टोल्ड देम मिस्टर एक्स यू नीड 2.6 ऑफ आरओएस। अगर 2.6 का आरओएस आता है you can scale to infinity, right? Now people who have done it so far, first order economics, आपने जो भी अपने hypothetical numbers डाले, just put it in the chat. What is the break even ROAS that you are getting if you are running ads for your clients, if you are an e-commerce owner, जो भी आप करते हो, what is the break even ROAS that you are getting? Just put it in the chat. Or if you want me to explain once again, so you can do it साथ में फिर से। 3.5, 3.5 Sagar, 3.5 is the break even ROAS. Okay, cool. Who else? Guys, if you think कि मेरे को एक बार फिर से explain करना, I can do it once again, because ultimately if you're investing your time here with me, कुछ ना कुछ, can you explain once again? Sure, sir, I'll explain once again, and everyone जिसको भी नहीं समझ आया एक बार, they can just go through it and they can do it, right? All right. So let me explain once again, right? And do side by side, so you'll get the idea. And I want you to get the results, because ये करने के बाद you won't be promising crazy things to the clients या फिर as an owner खुद को भी, है ना। सिंपल, जस्ट पुट योर एवरेज ऑर्डर वैल्यू कि जितने का भी एवरेज ऑर्डर वैल्यू आता है, यू कैन फाइंड इट ऑन दी शॉपिफाइड एनालिटिक्स सेक्शन के अंदर, ठीक है। 10% इज द डिस्काउंट, ये अपने आप यहाँ पे कलर हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉग्स, यू जस्ट हैव टू पुट, यहाँ पे चेंज करना है आपको, यू डोंट हैव टू चेंज हियर, यू जस्ट हैव टू, फॉर मी इट इज शोइंग 2.5 ROAS, 2.6 ब्रेक इवन, सनी इज सेइंग 2.5, I didn't get it. For me, it is showing 2.5 for ROAS and 2.6 is the break even. अच्छा, so 2.6 is the ROAS that you need, Sunny, basically, है ना। तो आपको अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, राइट। सिंपल, इस पर वापस आ जाते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल सिंपल। शॉपिफाई से ऑर्डर वैल्यू का डेटा आ जाएगा यहाँ पे, राइट। व्हाट इज द कॉस्ट परसेंटेज? पुट इट 30%, जस्ट पुट इट 30%। बाकी रियल नंबर्स यू जस्ट हैव टू चेंज। लेट्स से आप कल गए या वेबिनार के बाद आप अपने क्लाइंट के पास गए, या फिर if you own the brand, so you'll know it कि 40% है, 50% है, ठीक है, you'll get it. सिंपल 30% डाल देते हैं अभी। और यहाँ पे व्हाट इज द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी कितने रुपए का एक ऑर्डर आ रहा है, सीपीए कितना है, सीपीए कितना है, राइट। कॉस्ट पर रिजल्ट कितना है, अलग अलग वर्ड है, सबका मतलब सेम ही है कि कितने में एक ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। ये आपको आपके फेसबुक डैशबोर्ड से मिल जाएगा। वहां से मिलने के बाद यूल गेट इट कि 30% में हो रहा है, ठीक है। ये 3%, 2% यू जस्ट हैव टू पुट इट कि कितने रुपए का पैकेजिंग कॉस्ट है, कितने रुपए का सीओडी और गेटवे चार्जेस है। आपको बस ये 4 चीजें चाहिए, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि ब्रेक इवन रॉस 2.6 आ रहा है मेरा। नाउ दैट पर्सन मिस्टर एक्स, ही टोल्ड मी, विशाल 2.6 पे मैं समझ गया, मेरे को 3x नहीं चाहिए, मेरे को 6x नहीं चाहिए, 2.6x चाहिए, बट पैसे कैसे कमाऊंगा? ऑर्डर्स तो आ जाएंगे, कैसे कमाऊंगा? यू माइट बी थिंकिंग जस्ट सेम एज वेल, राइट, कि पैसे आएंगे कैसे? 2.6 का रॉस पे पैसे रुक जा रहे हैं, राइट। So then magics come into the picture. That is second order economics. ठीक है, second order economics में क्या है? If you'll notice कि मैंने क्या बोला था कि if you can have 100 customers a day every day for the whole year, right? तो सेम चीज है। Let's say if you are getting 100 customers a day for the whole year without losing money, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो 100 कस्टमर्स रोज के आ रहे हो कभी आपसे वापस नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे, राइट। जब वो वापस खरीदेंगे, सो देर आर डिफरेंट रिटेंशन चैनल्स, ईमेल, व्हाट्सएप, एसईओ, जिसकी वजह से लोग आपके प्रोडक्ट आपका इतना अच्छा है, लोग आपको याद रखते हैं, आपके एक्सपीरियंस की वजह से याद रखते हैं। सो व्हाट they'll do, they'll go on the Google, they'll search for your brand, they'll visit the website, they'll add the product into the cart and punch the order,
तो यहाँ पे फेसबुक का खर्चा आएगा नहीं आएगा। सो नंबर्स क्या होंगे वहाँ पे उस टाइम? सो फिल नोटिस 800 रुपये का ही सामान खरीदा उसने, डिस्काउंट आपने सेम दिया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी सेम है जितनी पहले की बन रही थी, जस्ट बिकॉज आपने ऐड नहीं चलाई इस बार उस सेकेंड ऑर्डर को लाने के लिए, तो आपकी कॉस्ट एक्विजिशन होगी 0। पैकेजिंग कॉस्ट इट्स जस्ट 24 रुपीज एंड 16 रुपीज सेम। सो अगर सब कुछ सेम है, आपका सिर्फ मार्केटिंग एड स्पेंड बच गया, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया 43%। एंड दैट्स वेयर द मैजिक लाइज, कि पहले ऑर्डर पे आप 70 रुपये कमा रहे थे, दूसरे ऑर्डर पे 310 रुपये कमा रहे हो। नाउ बहुत ही सिंपल मैथ्स है, एंड यू गाइस आर स्मार्ट इनफ कि लेट्स से इफ यू गेट 100 कस्टमर्स अ डे, एवरी डे फॉर द होल ईयर, उसमें से लेट्स से सिर्फ 50% लोग सेकेंड ऑर्डर करते हैं। टेल मी अमाउंट ऑफ मनी दैट यू गाइस कैन मेक, right? When I showed him this to Mr. X, and he was like, Vishal, let's scale it. We want to have, we want to hit that 1 CR mark, right? Now the question is, I have created this for you as well, कि किस एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे क्या पैकेजिंग कॉस्ट होनी चाहिए, क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एज वेल, राइट? सो इट्स लाइक, अगर आप कुछ भी लग्जरी प्रीमियम बेच रहे हो, समथिंग ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई एंड कॉस्मेटिक, तो आपका कॉस्ट 20 से 40% के बीच में रहेगा। इट कैन वेरी फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड, राइट, बट इस रेंज के आसपास है। अगर आप फैशन एंड एक्सेसरीज बेच रहे हो, 30 to 50%, होम एंड किचन बेच रहे हो, 30 to 50%, हेल्थ एंड ब्यूटी 20 to 40%, कुछ मास मार्केट है 40 to 60%, राइट? एवरेज ऑर्डर वैल्यू के अकॉर्डिंग पैकेजिंग कॉस्ट क्या आएगी वो है यहाँ पे, पैकेजिंग कॉस्ट नंबर में लिखा हुआ है, और सीओडी चार्जेस क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली टेक्निकल है थोड़ा सा, कि इट्स लाइक डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है। पीपल हु ओन्स द e-com brand, they know it, कि dead weight or volumetric weight. So I won't get into the details and technicalities, right? So this is something that I wanted to show you कि ब्रेक इवन लॉस कैसे निकालते हैं एंड कैसे 1 CR स्केल पे हम उसको स्केल करेंगे, ठीक है? नाउ कम बैक टू दिस, you can see my screen, right? So if I'll explain it in simple words, this is the 3-step formula to calculate break even loss. Write down your product price. Repeated customer depends upon the product in terms of, rightly said, upon products in terms of adventure sports equipment like backpack. It's hard to retain them. 10% addition is also difficult in this niche. Exactly, sign up. It happens. It varies from industry to industry. But how it happens is वहाँ पे profit margins ज़्यादा होते हैं, right? Profit margins वहाँ पे ज़्यादा होते हैं. If I talk about FMCG, let's say, I'm sure you guys must have seen ads of Country Delight. Country Delight कितनी ads आती है? So do you think कि उनका cost per acquisition 20-30 रुपए या फिर 100-200 रुपए होगा? नहीं. People spend 1,000-5,000 rupees to acquire one customer, but they know कि एक बार कस्टमर आ जाए तो वो 6 महीने साल भर कहीं नहीं जाएगा, right? So it varies from industry to industry, but yeah, अगर कहीं पे रिटेंशन कम है तो प्रॉफिट मार्जिन हाई रहेंगे फॉर श्योर, ठीक है? All right, so coming back to this 3-step formula is basically calculate your break even ROAS, write down your product price. Step 2 is basically subtract COGS, shipping and other costs, and step 3 is divide your selling price by your net profit per sale, और आपको वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है? Now you guys must be wondering, विशाल आपने मिस्टर एक्स को प्रॉमिस किया था कि 6 months में विल डू 1 CR, तो 1 CR हो गया था कि नहीं हुआ था, राइट? तो this is the result, 1.3 CR in 7 months, because we were not focusing on ROAS. हमने नहीं प्रॉमिस किया हम आपको 3x लाके देंगे. We added email and WhatsApp का channel, we targeted 2.6 का ROAS, we scaled it to the moon, and 1.3 CR in 7 months, this is what we did. Coming back to strategy number 2, right? The Facebook ad apocalypse. I'm sure बहुत interesting ऐसी चीज नहीं मिल रही होगी, right? YouTube वगैरह पे, और मे भी मिल रही होगी, not sure, ठीक है? So why your ads are dying and the 4 metrics that will bring them back to life. So I'm sure ऐसा हुआ होगा बहुत बार, है ना, कि कुछ ना कुछ देखा आप लोगों ने Instagram पे, YouTube पे स्ट्रैटेजी देखी, कोई नई एड टाइप देखी, आई एम श्योर बिफोर आफ्टर एड्स चलाओ, इन्फ्लुएंसर कैंपेन चलाओ, यूजीसी एड्स चलाओ, एंड यू गाइस हैव ट्राइड इट, बट काम करता नहीं है, राइट?
सो एक्चुअल में काम करता कैसे है? सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड बाय D2C ब्रांड सेलिंग वॉचेस. सो मे की बात है इन 2024. सो सब हमें सेल्स टीम मतलब कॉल आता है सीधा एंड सेड विशाल वी हैव टू टेक दिस ब्रांड. एंड आई मीन ही वाज लाइक विशाल इस ब्रांड को हमें ऑनबोर्ड करना ही पड़ेगा. आई मीन दे कैन डू क्रेजी नंबर्स लाइक 1 लाख की सेल तो बहुत इजी है, इजी सेल्स है. एंड दे हैव नंबर ऑफ लोकल ब्रांचेस. मेरठ में ब्रांच है, यूपी में ब्रांच है, नोएडा में ब्रांच है, राइट? और दे आर डूइंग क्रेजी मनी बट हार्डली ब्रेकिंग इवन ऑन दी ऑनलाइन. शॉपिफाई पे पैसे नहीं बन रहे. इतने सारे स्टोर्स हैं, इतने सारे ब्रांचेस हैं, बट रोआस एक का भी नहीं है. एंड आई वाज लाइक प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्स मिसिंग एंड व्हाई दे आर नॉट डूइंग 1 लाख पर डे? सो जो सेल्स रेप था, ही टोल्ड मी कि दे आर वर्किंग विद एन एजेंसी हु इज चार्जिंग क्रेजी मनी. पैसे तो अच्छे चार्ज कर रहे हैं और अच्छी खासा नाम भी है कंपनी का, राइट? बट नथिंग इज हैपनिंग. हो ही नहीं रहा है. नथिंग, नॉट मूविंग द राइट लीवर्स. आई मीन इट्स लाइक उनको पता ही नहीं है कि क्या कैंपेन चलाने, क्या करने हैं. बस नाम अच्छा एजेंसी का, राइट? एंड दे आर रैंडमली रनिंग द एड्स, टर्निंग ऑन द एड्स, टर्निंग ऑफ द एड्स. कोई डेटा वेटा कुछ नहीं बना रहे, बस दे आर डूइंग रैंडमली. इट्स लाइक आज ये चलाने का के चला देते हैं, कुछ नया मिला वो चला देते हैं, राइट? एंड द ओनर थॉट कि दिस इज हाउ द ब्रांड्स आर बिल्ट. बिकॉज if you are brand owner, you might be thinking, you might be stuck in this loop कि यार विशाल ब्रांड बनाना है तो साल 2 साल पैसे तो लगाने पड़ेंगे, बट दैट इज फॉर द ग्रोथ, नॉट फॉर द सर्वाइवल, राइट? एंड he was like the same. He told me that they had to lose money in online space for a couple of years. उनको भी यही लग रहा था. इवन दे वर डूइंग क्रेजी नंबर्स, अच्छे खासे नंबर, अच्छे खासे ब्रांचेस थे ऑफलाइन वर्ल्ड में, बट ऑनलाइन स्पेस में कुछ भी नहीं था. सो आई वाज लाइक ठीक है, ब्रांड को ऑनबोर्ड करने से पहले लेट्स नॉट डायरेक्टली जंप ऑन टू द कंक्लूजन. ब्रांड को ऑनबोर्ड करने से पहले ऑडिट करते हैं. पहले एक्सेस वगैरह लिया हमने, डेटा देखा हमने. एंड व्हेन आई सॉ द डेटा आई वाज लाइक इंटर्न्स ना इससे ज्यादा अच्छे एड्स रन कर सकते हैं हमारी. आई मीन नो ऑफेंस टू दैट एजेंसी, बट आवर इंटर्न्स कैन मैनेज द कैंपेन्स बेटर, टू बी ऑनेस्ट, राइट? एंड देन वी टोल्ड अबाउट 4 इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स व्हिच मेक और ब्रेक द परफॉर्मेंस. जब हमने उनको डेटा दिखाया एक्चुअल में कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, इवन इफ यू आर रनिंग द एड्स, लॉन्चिंग द एड्स, बट कुछ हो नहीं रहा है बिकॉज यू आर नॉट पुलिंग द राइट लीवर, राइट? एंड देन ही रियलाइज इट्स दैट मच इजी. ही गेव अस द टास्क. जब उनको समझाया कि ये 4 चीजों पर अगर आप ध्यान दोगे, आप यू कैन इजीली आस्क योर ओन एजेंसी टू पुल इट ऑफ. बट ही वाज लाइक विशाल, आई ट्रस्ट योर एक्सपर्टीज, आई ट्रस्ट योर कंपनीज एक्सपर्टीज. आप इतना अच्छे से समझा सकते हो. आई वांट यू टू कंप्लीट दिस टास्क, perform it. And what we did, we basically used our playbook that we created, right? उसके बाद से we figured out कि क्या रिजल्ट था. I'll be revealing that as well. So what was those 4 metrics? मैंने क्या समझाया था मिस्टर वाई को? That is CPM, CPC, average order value, conversion rate. So I won't get into a lot of detail, but I'll be explaining कि actual में काम कैसे करेगा and how it will be, do some crazy changes in your campaigns, right? As a marketer, CPM is basically कि कितनी अच्छी आपकी ad है, right? कितना attention आपकी ads कैच कर पा रही है, कितने आपकी एड्स नेटिव लग रही है, मीन्स वो नेचुरल लग रही है प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग. अगर आपकी एड साउंड नहीं कर रही है तो वो अच्छी एड है, राइट? CPC इज बेसिकली कितनी अच्छी आपकी कॉपी राइटिंग है, कितने अच्छे आपके हेडलाइंस है. इफ यू नोटिस कि व्हेन समवन रीड्स न्यूज़पेपर, दे वोंट रीड एवरीथिंग, राइट? दे विल जस्ट रीड द हेडलाइन. इफ इट इंट्रीग्स देम, उनको लगता है यार कुछ एक्साइटिंग हो सकता है, तब वो उसको जाके पढ़ेंगे, है ना? सो दैट्स द पार्ट ऑफ द CPC. ये कितनी अच्छी आपकी हेडलाइंस है, कितनी अच्छी आपकी एड कॉपीज है, क्या आप यूजर से एक्शन वो करवा पा रहे हो आप चाहते हो. थर्ड इज एवरेज ऑर्डर वैल्यू. हाउ मच समवन इज एक्चुअली ट्रांजैक्टिंग विद योर स्टोर. कोई इंसान आता है सिर्फ 100 रुपए का सामान खरीदता है, और एक तरफ है दूसरी शॉप जहाँ पे लोग आते हैं तो 1000 रुपए सामान खरीदते हैं. तो ऑब्वियसली जहाँ पे 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ज्यादा पैसे कमाएगा. कन्वर्जन इज बेसिकली हाउ मेनी पीपल एक्चुअली बाइज. एग्जाम्पल के तौर पे एक शॉप है जहाँ पे 100 आते हैं और सिर्फ एक इंसान खरीदता है, तो एक सेल होगी. बट दूसरी साइड पे सेम शॉप है, सेम चीज बेच रहे हैं, बट 100 लोग आते हैं तो 10 लोग खरीदते हैं, जस्ट बिकॉज उसने अपनी शॉप को हिसाब से डिजाइन कर रखा है, हिसाब से ऑफर लगा रखे हैं, अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स को सबसे आगे रखा हुआ है, राइट? सो कन्वर्शन रेट वो होता है. नाउ ये तो हो गया समझने के लेवल पे, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज ये इम्पैक्ट कैसे करेगा आपकी परफॉर्मेंस पे. लेट्स से कि विशाल, हमने देखा कि CPM खराब हो रहा है, लेट्स डू सम सर्टेन चेंजेस इन द CPM. CPM चेंज करेंगे तो रिजल्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा.
Do you want to see the numbers, right? Because performance marketing, it's all about the numbers. कि CPM बेटर होता है तो क्या हो रहा है, CPC में अच्छी एड कॉपीज लिखते हैं तो क्या होता है, अच्छे एवरेज ऑर्डर वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है, राइट? सो आई एम गोना गिव दिस टू यू एज वेल, ROI कैलकुलेटर, जो आप खुद से यूज भी करोगे, राइट? जस्ट गिव मी अ सेक, आई एम गोना शेयर दिस लिंक एज वेल. उसके बाद you can just make a copy, take your time. Can you see my screen? Just give me a second. ठीक है, I've shared this thing. Vishal, can you tell me how to identify what's good CPM, CPC, average order conversion? Sainath, we'll take the questions at the end. It varies from brand to brand, and this is something which we have mentioned in the our own, क्या कहते हैं उसको, this playbook that we have created so far, right? Just copy this. We can't make a copy. It's accessing request. Need access. अच्छा, don't ask for access. Just मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है उधर. आई एम शेयरिंग दिस वंस अगेन. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेक. मैं इसका एक 6 people have already requested the access. Relax guys, मैं दे दूंगा, मैं मना नहीं करूंगा. Can you check now? Awesome, awesome. All right, make a copy and we're gonna talk about it and you can do it. And trust me, अभी अच्छा, while you make a copy of it, open your Facebook dashboard as well. एक दूसरे टैब में I'm gonna show you that how it will actually impact. No fluff, डायरेक्ट नंबर्स पे बात करेंगे. Just drop a thumbs up when you are done with the copying the sheet and opening your Facebook dashboard. All right, it looks like most of you guys have done it. Awesome. All right, can you see my screen? I can see a lot of people are still here. They will make a copy of it. Awesome, awesome, awesome. ठीक है. So I'll be talking about one thing at a time. जैसे मैंने बोला था, open a Facebook dashboard साइड के में, है ना? And you just have to take a note of 5 numbers. ठीक है. First is amount spent. Please send the link again. Guys, can someone send the link once again? Just make a copy of it. I'll take 2-3 seconds more. Thanks, Sagar. Thanks, Sunny. Thanks, Par. Thanks, guys. Thanks. So supportive. मतलब आपस में हेल्प कर रहे हो आप लोग. Nice. Shall we start? If you guys are done. Awesome. ठीक है. So if you'll notice, ये इसमें सब में फॉर्मूले लगे हैं. ठीक है. You don't have to do anything. कुछ भी नहीं करना है. Just put your amount spent. ठीक है. Just put your amount spent. You can do it for the last 7 days या last 30 days का Facebook डैशबोर्ड से डेटा कि कितना अमाउंट स्पेंड हो रहा है. ठीक है. सो हाइपोथेटिकली आई एडेड कि 5 लाख रुपए हमने स्पेंड करे. ठीक है. सीपीएम का आपको कॉलम मिल जाएगा, कस्टम कॉलम में जाके यू कैन राइट इट डाउन कि अच्छा 350 रुपए का सीपीएम आ रहा है. ठीक है. अगर 350 रुपए सीपीएम आ रहा है मीन्स इतने लोग हमारी एड देखेंगे. आपको सिर्फ सीपीएम ऐड करना है, सीटीआर ऐड करना है, कन्वर्जन रेट और सीओवी ऐड करना है. ठीक है. मैं इसको कलर कर देता हूँ बस. इसके अलावा कुछ भी नंबर्स को आप टच मत करना, सब में नंबर्स लगे हुए हैं, है ना? एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई शोड टू हिम, मिस्टर वाई, कि ये प्रॉब्लम चल रही है कि 350 रुपए का सीपीएम चल रहा है, सीटीआर इज 0.5%. मीन्स कितने लोग आपकी एड पे क्लिक कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ आपका सीपीसी निकल जाएगा. मीन्स अगर हम कुछ कितने 14 लाख 28,000 कुछ, अगर हम ऑलमोस्ट 14 लाख लोगों तक पहुंचते हैं
तो 70 रुपए में एक इंसान हमारी शॉप पे आता है, फॉर अ वेरी लेमन, ठीक है। 5 लाख रुपए खर्च करते हैं, 14 लाख तक लोगों तक हम पहुंचते हैं। 70 रुपए में एक इंसान हमारी शॉप में आता है, और जब 100 इंसान आते हैं तो एक इंसान खरीदता है, दैट इज कन्वर्जन रेट। और जब एक इंसान खरीदता है तो 2,000 रुपए का रेवेन्यू आता है, राइट। इसका मतलब कि टोटल कितने ऑर्डर्स आए, क्लोज टू 71.43, तो राउंड फिगर्स में इसको हम कर देंगे तो 71 ऑर्डर्स मीन्स 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद 71 ऑर्डर्स आए, टोटल रेवेन्यू हुआ 1,42,000, रोआस इज ऑफ 0.29, यानी कि ये खराब रोआस है, ठीक है, ऑब्वियसली खराब रोआस है। तो 5 लाख खर्च करने के बाद 1,42,000 बन रहे हैं। दिस इज हाउ फंडेड स्टार्टअप्स वर्क, कि ठीक है, वी जस्ट हैव टू एक्वायर कस्टमर्स, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जा रही है 7,000 रुपए। व्हाट्स नेक्स्ट? तो जब हम किसी को भी जर्नी देते हैं, रोड मैप देते हैं कि सी मिस्टर ABC विल रन दी एड्स फॉर यू, दिस इज द रोड मैप, वी वोंट प्रॉमिस, वी वोंट गारंटी, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि सबसे पहले सबसे इजी चीज, सबसे इजी लिवर, व्हाट वाज द 4 मैट्रिक्स, CPM, CPC, AOV, CR। हम बोलते हैं हम आपकी ना एड सबसे पहले अच्छी करेंगे, विल सी आपके एड अकाउंट के अंदर सबसे अच्छी एड्स कौन सी चली है अभी तक, सबसे कम CPM किसमें है, उसका रीजन क्या था उस CPM कम होने का, वी डू एवरीथिंग, ठीक है। सो मानते हैं कि 250 का CPM हो जाएगा बाद में, ठीक है। रोआस जंप टू 0.29 से 0.40, तो 250 रुपए का CPM होते ही, और सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, CTR अभी भी सेम है, पहले 70 रुपए में एक इंसान आता था शॉप में, अब 50 रुपए में आता है, सेम सामान खरीदता है और 100 में से एक इंसान खरीदता है। लेट्स से अगर हमने इतनी अच्छी ऐड बना दी, ये 150 का CPM हो गया, तो ROI 0.67 पहुंच गया, ठीक है। आगे चलते हैं, तो पहले महीने में इट्स गोना, ऑब्वियसली इट्स अ प्रोसेस, कोई ऐसा हैक नहीं है कि मैं बोलूंगा कि ये 4 चीज लगाओ और काम कर जाएगी। इफ एवरीथिंग वुड बी दैट मच इजी, तो सारे लोगों का ई-कॉम ब्रांड होता है, सब 1 करोड़ कर रहे होते हैं, राइट। सो मैं वो सब बुलशिट प्रॉमिस नहीं करूंगा, इट्स गोना टेक अ व्हाइल, 1 महीना लग जाता है, अच्छी एजेंसी का 1 महीना लग जाता है, लोगों को साल लग जाते हैं, ठीक है। सो 150 का CPM आ गया। व्हाट्स नेक्स्ट? कि मान लेते हैं अब इट्स ऑल अबाउट द कॉपी राइटिंग, कि मैं किस हिसाब से कॉपी राइटिंग करूं। मैं डेविड ओगिलवी की कॉपी राइटिंग फ्रेमवर्क्स यूज कर रहा हूं, मैं पास फ्रेमवर्क यूज कर रहा हूं, मैं ब्रिज फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, राइट, आइडा मॉडल, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ये सारी चीजें यूज कर रहा हूं। ये ऑब्वियसली सागर मेंशन दैट, राइट, पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। आई गेस यू गाइस आर स्मार्ट इनफ, आपको फ्रेमवर्क्स वगैरह भी पता है। तो CTR अच्छा कर देते हैं, ठीक है, लेट्स से 1% का CTR हो जाता है। एज यू विल नोटिस कि सेकंड महीने में ROI गोस टू 1.33। पहले 5 लाख रुपए खर्च करके 1,42,000 बन रहे थे, अब 5 लाख खर्च करके 6 लाख बन रहे हैं, विच इज ग्रेट, 133 का रोआस आ रहा है। और अभी हमने स्ट्रैटेजी वन में देखा था कि ब्रेक इवन रोआस हमें चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं 1% का CTR आ रहा है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? 1% का CTR हो गया, पहले 70 रुपए में एक इंसान आता था शॉप के अंदर, अब 15 रुपए में आ रहा है। अब कहते हैं कि ये काम करते हैं कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाते हैं। मींस मैंने क्या किया, मैंने क्लब करा कि यार ये वाला प्रोडक्ट मेरा सबसे ज्यादा बिकता है, और एक वाई प्रोडक्ट है जो मेरा सबसे कम बिकता है। तो जस्ट टू क्लियर आउट दैट इन्वेंट्री, हम क्या कर सकते हैं कि जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उसके साथ 50% ऑफ दे देते हैं, हमारा जो नॉन मूविंग आर्टिकल है। तो मानते हैं कि 2,000 की जगह अब लोग 2,200 का सामान खरीद रहे हैं, ROI गोस टू 1.47, ठीक है। बस हमने एक ऑफर लगा दिया, इतना किया हमने। मंथ 4 में हमने ऑब्वियसली काफी सारे ऑफर्स वगैरह टेस्ट करे, यू कैन मेक बंडल, वेरी स्मार्ट, कि बंडल बना देते हैं कि लेट्स से अगर आप 2,000 रुपए का सामान खरीद रहे हो, तो आप या फिर एक काम करो, आप 4,000 का सामान खरीद रहे हो, आपको 1,000 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। 4,000 का सामान खरीदने में 1,000 रुपए डिस्काउंट, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू घूम के 3,000, ROI गोस टू 2, वेरी स्मार्ट। किसने आइडिया दिया था ये? आई गेस इट वाज सागर, सागर, या मेक बंडल्स, क्रेजी बंडल्स, राइट। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? एक काम करते हैं, अगर इतना सब कुछ हो गया, अपना शॉप को थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, एज इन जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं सबसे आगे लगाते हैं शॉप में, है ना। मीन्स हमारे बेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे कैटलॉग बन गए, हमारा होम पेज पे आ गया, जो डिस्काउंट प्रोडक्ट्स है वो सबसे ऊपर आ गए, जो नहीं बिकता वो सबसे नीचे चला गया, जिसके ब्रोकन साइजेस हैं वो नीचे चले गए। तो ये करते ही अगर हमारा कन्वर्जन रेट 1.25 हो जाता है, ROI goes to 2.50, नॉट प्रॉमिसिंग 10x, नॉट प्रॉमिसिंग 20x। अगर आपका ROI 2.25 पे ब्रेक इवन हो रहा है, 2.50 पे आपको ये नंबर चाहिए होंगे। सो एज यू कैन सी, जर्नी गोज फ्रॉम 5 लाख खर्च करके 1,42,000, और यहाँ 5 लाख खर्च करके 12.5 लाख का रेवेन्यू, विच इज ग्रेट। बेशक फंडेड कंपनी है, चाहे बूटस्ट्रैप कंपनी है, आपका क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, आपका खुद का ब्रांड है, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ ब्रांड, दिस इज व्हाट यू नीड टू लुक आउट फॉर।
तो आपको अब अपने 4 मैट्रिक्स पता होंगे कि अगर मेरे को ब्रेक इवन रोआस लेट्स से 2.50 चाहिए, इसके लिए मेरा सीपीएम होना चाहिए 150, मेरा सीपीसी होना चाहिए 15 रुपए, ये था सीपीसी, मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू होना चाहिए 3000 रुपए, मेरा कन्वर्जन रेट होना चाहिए 1.25%। सो अब से इफ यू आर अ ब्रांड ओनर, इफ यू आर अ ब्रांड ओनर, इफ यू वांटेड टू स्टार्ट अ ब्रांड, अब जब भी आपकी क्लाइंट मीटिंग होती है आपकी एजेंसी के साथ, अपनी मार्केटर्स के साथ, अपने फ्रीलांसर्स के साथ, यू जस्ट डोंट हैव टू सिट एंड लिसन टू देम कि वो बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऊपर हो रही है, परफॉर्मेंस नीचे हो रही है, बिकॉज यू ओन द ब्रांड, यू आर इन्वेस्टिंग मनी, योर हार्ड एंड कैश, you have to be 2 steps ahead from the marketer. And if you are a marketer, just because you attended this webinar, you are already 2 steps ahead. तो आप उनको ये नहीं बोलोगे परफॉर्मेंस ऊपर हो रही है, परफॉर्मेंस स्टेबल नहीं है, एल्गोरिदम चेंज हुआ है। जिसको नहीं पता होता है दे ब्लेम सेकेंडरी स्टफ। आप हमेशा इन 4 मीटर से बात करोगे। अगर आप मार्केटर नहीं हो, अगर आप ब्रांड ओनर, आप बोलोगे कि मिस्टर मार्केटर हमें सीपीएम 150 का चाहिए, कैन यू डू इट? हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं सुनना है आपका 10x 20x, हमारा करंट सीपीएम इज 250, कैन यू डू इट 150? हाउ गुड एड्स यू मेक, दैट विल मेक इट डाउन टू 150। कितनी अच्छी कॉपी राइटिंग करते हो आप, 70 रुपए से 15 रुपए सीपीसी ला सकते हो। कितने अच्छा आप ऑर्डर के बंडल बनाते हो, डिस्काउंट देते हो जिससे आप ऑर्डर भी बढ़ सकता है। कितना अच्छा आप हमारी वेबसाइट में चेंजेस करते हो जिससे कन्वर्जन रेट बढ़ सकता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू आस्क, दिस इज व्हाट यू हैव टू लुक फॉर, जिससे आपका आरओआई 0.29 से 2.50 हो जाएगा। आई होप दिस वाज इंटरेस्टिंग, राइट? सो ये आपको पता होना चाहिए। कमिंग बैक टू अब क्वेश्चन कि एक्चुअल में फिर हुआ क्या, ठीक है? कि ये तो 4 मैट्रिक्स पता लग गए, यू विल बी लाइक विशाल ये तो हमें पता है 4 मैट्रिक्स, जिसको पता है कि हाँ ये 4 मैट्रिक्स करने हैं, बट हम करेंगे कैसे, कि अच्छी ऐड बनाएंगे कैसे, और आपने कैसे किया, राइट? सो वी हैव समथिंग नोन एज दिस 4 प्लेबुक्स दैट वी यूज टू फिक्स द मैट्रिक्स, ठीक है? अब अच्छा, मैं बेच नहीं रहा हूँ बाय द वे, ठीक है? दिस इज नॉट फॉर सेल, मैं कुछ भी अभी बेच नहीं रहा हूँ, यू कैन स्टे ऑन द कॉल, यू कैन स्टिल लर्न, वी हैव वन मोर सीक्रेट, वो भी मैं बात करूंगा। सो ये 4 प्लेबुक्स हैं, विच इज हाउ टू कंट्रोल योर सीपीएम, कि कैसे मैं अपना सीपीएम सस्ता करूं, 350 से 150 रुपए कैसे लेके आऊं, सीपीसी को कंट्रोल कैसे करूं, 70 रुपए से 15 रुपए सीपीसी कैसे लेके आऊं, अपने एवरेज ऑर्डर वैल्यू को कैसे बढ़ाऊं, कन्वर्जन रेट को कैसे बढ़ाऊं, है ना? तो अब यू माइट गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि इसके अंदर है क्या, इस प्लेबुक्स के अंदर ये एक एक पेज का चैट जीपीटी वाला तो नहीं है, चैट जीपीटी वाला नहीं है ये। व्हेन आई वाज बैक इन माय डेज, जब मैं स्टार्ट करा तब से मैं इसको पर्सनली इसमें चीजें ऐड कर रहा हूँ, राइट? सो सीपीएम प्लेबुक के अंदर इफ आई जस्ट गिव यू अ क्विक ओवरव्यू कि सीपीएम को समझते कैसे हैं, बहुत सारे लोगों को सीपीएम समझ नहीं आता है कि फेसबुक ऑप्शन सिस्टम कैसे लगाता है, थोड़ा टेक्निकल भी है इसके अंदर कि सीपीएम को मास्टर कैसे करना है, किसी ब्रांड के लिए क्यों मैटर करता है ना? किस टाइप की टारगेटिंग करनी है वो इसके अंदर मेंशन है कि जिससे कम सीपीएम मिले, किस हिसाब से एड फ्रीक्वेंसी को सेटअप करना है, किस हिसाब से ज्यादा ज्यादा सीटीआर मिले आपको, ठीक है? किस हिसाब से क्रिएटिव वेरिएशन करना है कि इमेज एड्स चलानी है, वीडियो एड्स चलानी है, राइट? किस हिसाब से सीपीएम को इफेक्ट करेगा, बिडिंग स्ट्रैटेजी, कॉस्ट पर रिजल्ट लगाना है कि बिड कैप लगाना है, कॉस्ट कैप लगाना है, लाइक ऑडियंस कैसे यूज करनी है, रीटारगेटिंग कैसे यूज करनी है। ऑल्सो इसके अंदर कुछ 300 से ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स हैं हर एक इंडस्ट्री की। तो अगर आप बोलोगे ना कि जैसे विशाल हमारे पास हमारा B2B बिजनेस है, उसके लिए सीपीएम कैसे कम करेंगे, उसमें भी बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स है। आप बोलोगे विशाल हमारा कोई मेडिकल बिजनेस है, समथिंग इन टू द हेल्थ केयर, उसकी भी बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स है, राइट? फिर टॉप फ्रेमवर्क इसके अंदर कि किस हिसाब से वीडियोस को एडिट करते हैं, किस हिसाब से शूट करते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर है। जिससे होगा क्या एट द एंड, अगर आप ये सारी चीजें इस्तेमाल करोगे, योर एड्स विल बी सीन बाय मोर ऑफ द राइट पीपल फॉर लेस मनी। आप पैसे लगा के आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे, ठीक है? इफ आई टॉक अबाउट द सीपीसी प्लेबुक, आई एम श्योर कि ये सारी चीजें समझ आ रही है आपको, राइट? गाइस कैन यू हियर मी? आई गेस नेटवर्क इशू तो नहीं है, ऐसा लग रहा है मैं बस बोले जा रहा हूँ। अच्छा, पीस सोल्यूशन, थैंक्स थैंक्स फॉर द अपडेट, ठीक है? सो इफ टॉक अबाउट द सीपीसी प्लेबुक, इसके अंदर वो हर टाइप की एड कॉपी ऑप्टिमाइजेशन है कि किस हिसाब से आपको एड कॉपी लिखनी है जिससे आप अटेंशन ग्रैब करोगे, क्यूरियोसिटी क्रिएट करोगे, और क्लिक्स लेके आओगे ज्यादा से ज्यादा, राइट? एंगेजिंग क्रिएटिव डिजाइन कैसे करना है, वो वाला पार्ट इसके अंदर आएगा। ऑडियंस को सेगमेंट कैसे करना है, सेगमेंट एज इन लेट्स से आप सेम कॉपी सब लोगों के लिए नहीं लिख सकते, राइट? इफ आई एक्सप्लेन इट इन सिंपल टर्म, आप सबको ये बोल सकते हो कि 50% डिस्काउंट है, ले लो। 50% डिस्काउंट आप उनको बोलोगे जो आपकी वेबसाइट पे आ गया है। जो आपकी वेबसाइट पे नहीं आया है, आप उनको बताओगे कि हमारा प्रोडक्ट कितना यूनिक है।
अगर आप सबको ही बोलोगे 50% डिस्काउंट है तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस, राइट? ए बी टेस्टिंग कैसे करनी है हेडलाइंस की, कॉपीज की, वो सारी चीजें। और इसके अंदर 1500 से ज्यादा विनिंग हेडलाइंस है जो हमने टेस्ट करी है, जो हमने फिगर आउट करी है, अच्छा ये सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है। 25 से ज्यादा कॉपी राइटिंग फ्रेमवर्क्स है, इवन बेस्ट परफॉर्मिंग कॉपीज है, एंड कुछ आई गेस कितने 100-150 से ज्यादा चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स हैं जो आपको एड कॉपी आपके निश के हिसाब से लिख के देगा, ठीक है। और इससे होगा क्या, ऑब्वियसली आपका सीपीसी कम हो जाएगा, जिससे ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आ पाएंगे। थर्ड प्लेबुक इज ऑल अबाउट द एवरेज ऑर्डर वैल्यू। जैसा अभी सागर ने बोला था कि बंडल कर सकते हैं प्रोडक्ट को, तो किस हिसाब से बंडल करने हैं आपको, अपसेल क्रॉस सेल स्ट्रैटेजी कैसे लगानी है, डिस्काउंट स्ट्रैटेजीज कैसे लगानी है, एडवांस फनल स्ट्रैटेजीज कैसे लगानी है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स कैसे सेट करने हैं, स्केर्सिटी एंड अर्जेंसी कैसे दिखानी है, एंड इवन 20 से ज्यादा। सो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल बॉट दैट 497 वाला पैकेज हमारे, जिसके अंदर आपको 20 से ज्यादा सेल्स फनल ब्रेकडाउन मिलते हैं, तो उसके अंदर भी काफी स्ट्रैटेजी इसके अंदर मेंशन है, जिससे ऑब्वियसली आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगा। एंड लास्ट प्लेबुक इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन रेट, कि हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस कैसे डिजाइन करते हैं, कुछ सैंपल्स होंगे इसके अंदर, सोशल प्रूफ कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। अलॉट आई सीन अलॉट ऑफ पीपल जो ना सब सुंदर पेजेस बनाते हैं बट वो कन्वर्ट नहीं हो रहे होते हैं, राइट? तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। सोशल प्रूफ कैसे लगाने हैं, फनल ऑप्टिमाइज कैसे करना है, एंड ट्रैकिंग एनालिटिक्स कैसे करना है। ऑल्सो इसके अंदर 300 से ज्यादा चेक पॉइंट्स है कि अच्छा ये चीजें आपका, अगर आपका ऐड टू कार्ट पेज है, चेकआउट पेज है, होम पेज है, तो क्या क्या चेंजेस करोगे आप जिससे जिससे आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस इज 4 प्लेबुक्स इज ऑल अबाउट। बट या दिस इज नॉट फॉर सेल, अभी तो नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। नाउ यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि विशाल ये प्लेबुक सुनने में बहुत बढ़िया लग रही है, आपने बताया भी कि उसका रोएस नहीं आ रहा था, जो 4-5 जिसके ब्रांचेस हैं, रिजल्ट का है, क्या हुआ था रिजल्ट का? सो एज यू कैन सी दिस इज द बिफोर आफ्टर। तो पहले आप देखोगे कि कुछ 79,000 कुछ स्पेंड हो रहे थे, कितने करोगे सर? 1.66 मई की बात है 2024, एंड दिस आफ्टर दिस इज क्लोज टू 5.7 करोड़। तो अगर आप देखोगे मेन मेन चीजें, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त क्या क्या चल रहा है, 1.66 रोआ से 2.31, 3.2, 5.77, कॉस्ट ऑफ परचेज 4,000 से सीधा 646, एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑलमोस्ट सेम, सीपीएम क्या चल रहा है, 65 से 44 हो गया, सीपीसी 4 रुपए से 2.45 हो गया, कन्वर्जन रेट 0.14 से 0.42 हो गया। इसके अलावा और कोई मेट्रिक है ही नहीं यहाँ पे, और अभी मेट्रिक आप सामने ही देखा है, राइट? एक और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आई मीन दिस इज समथिंग द ड्रीम ऑफ ऑल द ई कॉमर्स ब्रांड ओनर। ये अगर ऐसा कुछ हो जाए तो विशाल फिर तो सब कुछ अच्छा ही है। दिस इज द लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग, यू कैन सी दिस ब्रांडेड 1 CR, ये सेम ब्रांड है, 1 CR किया था उन लोगों ने लास्ट 6 मंथ्स में, जो ये सेम ब्रांड है जिसका मैं केस स्टडी बता रहा हूँ। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो पहले जो मेरे को मेरे सेल्स रेप ने कहा था कि विशाल ये 1 लाख रुपए इजीली कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर वेल इक्विप्ड विद द राइट नॉलेज एंड एवरीथिंग, उसको पता था कि यार ये बहुत इजी ब्रांड है, हो जाएगा 1 लाख रुपए महीना। इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि मेजॉरिटी क्या है, 100% ऑर्डर्स वर प्रीपेड। you'll see the spike, and you'll see कि डेली बेसिस पे 51,000, yesterday you'll say 99,000 की सेल, ठीक है। You can see a spike, 1,22,000 की सेल, then there is 1,13,000 की सेल, then 99,000, so daily sale है, right? You'll see prepaid orders, all prepaid orders, just through Facebook ads, just through Facebook ads, just prepaid orders, कोई सीओडी नहीं है, कोई भी सीओडी नहीं है। इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो अब लास्ट चीज, स्ट्रैटेजी नंबर 3, ठीक है। अभी तक व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार कि उस सारे 10x 20x रोआस के पीछे नहीं भागना, राइट? सेकंड, कौन से मेट्रिक्स पे ध्यान देना है, लास्ट स्ट्रैटेजी नंबर 3, इसके बाद विल एंड द वेबिनार, द 1 CR शॉर्टकट, हाउ स्मार्ट ई-कॉम ब्रांड स्केल विदाउट वेस्टिंग मनी ऑन बैड एड्स, यूजलेस एजेंसीज और ओवरप्राइस्ड gurus, ठीक है। सो
इसको भी जानने के लिए वो काफी टाइम लग गया था। सो दिस इज समथिंग बैक इन माय, वापस चलते हैं एक बार इंटर्नशिप डेज के टाइम। तो उस टाइम की बात है। सो उस टाइम क्या था कि आई वाज वर्किंग वही 18 घंटे, स्टक रहता था हमेशा वही सेम चीज के अंदर। अच्छा, बाय द वे दिस वाज अ लग्जरी वुमन फुटवेयर ब्रांड, ठीक है, जूती वगैरह बेचते थे। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल गेस्टेड द नेम एज वेल, ठीक है। तो उस टाइम होता क्या था, मेरा डे हिसाब से लगता था कि फटाफट 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस पहुंच के फटाफट डैशबोर्ड वगैरह खोलने हैं, उधर मीटिंग स्टार्ट हो गई है, स्टैंडअप मीटिंग, दे विल टेल दी नंबर्स। मेरे नंबर्स वही है अभी के अभी कि 10 लाख ही हो रहे हैं, 3 लाख रुपए हम खर्च कर रहे हैं, 10,000 रुपये आसपास दिन का, है ना। फटाफट डेटा डाउनलोड करो फेसबुक से, शीट्स में डालो, गूगल शीट में डालो, ब्रांड मैनेजर को दो, सारी चीजें बताओ। तो बैक एंड फोर्थ मेरा टाइम इसी में रहता था। और मैं इसी में लगा रहता था कि शीट्स को डाउनलोड करो, शीट्स को मैनेज करो, एक उसकी ऑडियंस की शीट बनानी, कौन कौन सी ऑडियंस चल रही है, किस टाइप के क्रिएटर्स चल रहे हैं, और अभी रोआस क्या आ रहा है। उस टाइम सीक्वेंस सीरीज को पता भी नहीं होता था, बट मेजोरिटी टाइम मेरा इसी में रहता था कि शीट को डाउनलोड करो, शीट को भरो। हाफ ऑफ द टाइम इसी में जाता था, एंड आई एम श्योर पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग इट आउट उनका भी इसी में जाता था, है ना। एंड आई थॉट कि दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। कहते हैं ना कि हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, दिस इज द हसल, दिस इज द स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिस इज व्हाट इज नीडेड टू स्केल द ब्रांड्स, एंड आई वाज वर्किंग हार्ड। आई थॉट कि मैं सही चीज कर रहा हूँ, ये करना ही पड़ेगा। 10 लाख के लिए तो 18 घंटे बनते हैं। And I, so what happened? You remember the same guy, Mr. Manikant, जो सर थे, the person who was doing 5 year, right? His, obviously brand manage कर रहे थे वो. So I asked him कि यार सर, मैं 10 लाख रुपए की सेल के लिए मैं 18-18 घंटे लगा रहा हूँ, शीट्स ही मैनेज करता रहता हूँ, ऑप्टिमाइज करने पे लगा रहता हूँ, गलत कैंपेन बंद कर देता हूँ, राइट। एंड आई आस्क्ड हिम कि हाउ कम यू आर सो फ्री। आप आप तो नहीं करते हो इतना, आप तो मेरे को हमेशा फ्री दिखते हो। एंड दैट वाज माय लाइफ चेंजिंग मोमेंट उस टाइम की, यार वो 5 CR करके मेरे से ज्यादा फ्री है। मैं 10 लाख के ब्रांड की सेल्स लाने के लिए मेरे 18 घंटे लग रहे हैं, इसमें कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। एंड ही टोल्ड मी, विशाल, यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम आउटसाइड द फेसबुक डैशबोर्ड टू एक्चुअली सी द रिजल्ट्स। आई एम गोना रिपीट दिस। He told me you need to spend more time outside the Facebook dashboard to actually see the results. मेरे को नहीं समझ आया था पहली बार, to be honest, and I asked how. So he told me कि he basically gave me this reporting sheet, right? कि अगर if you're just using Google Sheets अभी भी, तो you're dead. You can't manage just you can't just manage one brand. अगर आप एक ब्रांड मैनेज कर रहे हो और उस पे भी आप 10 लाख की सेल लाके दे रहे हो, एजेंसी आपको वैसे निकाल देगी 2-3 महीने में, क्योंकि यू आर नॉट actually generating value for the agency. How to automate this? So he gave me a reporting sheet. एक लुका स्टूडियो, आई एम श्योर गूगल डेटा स्टूडियोज करके पहले नाम था उसका, अभी अपडेट के बाद इट्स लुका स्टूडियो। यू नीड टू ऑटोमेट दिस, इसको ऑटोमेट करो, फिगर आउट। ही टोल्ड मी दिस 4 मेट्रिक्स एज वेल। तो उस मेट्रिक्स को पूरा ऑटोमेट करो। ही टोल्ड मी अच्छा, ये सारी चीजें करने के बाद यू विल बी एबल टू सी डेटा, यू डोंट हैव टू मेक योर हैंड्स डर्टी गूगल शीट्स के अंदर जा जाके बार बार। एंड people who are at the senior level, management level, they don't want to see Google Sheets, they don't want to see your Facebook dashboard. उनको बस ये समझना है कि भाई कितना पैसा खर्च करा है मैंने, कितना पैसा बना के दिया है, सिंपल। मेरे को नहीं सुनना है आपका सीपीएन सीपीसी, मुझे मैट्रिक्स बताओ कि कितने पैसे बन रहा है, राइट। सो आई वाज लाइक, यू आर सेइंग राइट, मेरे को नहीं करना है ये गूगल शीट्स वगैरह। ऑब्वियसली आई हैव टू फोकस ऑन कि मैं अच्छी एड्स कैसे बनाऊं, अच्छी टारगेटिंग कैसे करूं, अच्छे अकाउंट स्ट्रक्चरिंग कैसे करूं, सही कैंपेन्स को पॉज कैसे करूं। सो ही गेव मी दिस ऑटोमेटेड शीट कि इस वाली शीट को लगाओ, सारा डेटा ऑटोमेटिक फेच होता रहेगा, एंड यू विल बी एबल टू सी ग्राफ्स, बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग वी डोंट जस्ट see the numbers and understand, right? We need to see some visual representation कि अगर मैं कह रहा हूँ कि एक नंबर लिखा पड़ा है 100 डिजिट तक, you have to figure out कि सबसे ज्यादा स्पाइक कहाँ पे आया है। you'll take time but you'll able to figure it out. But if you'll see a graph कि एक पूरा 100 दिन का ग्राफ बनाया है, there is a peak, you can see okay this is the best day, right? So he gave me that report, सब कुछ ऑटोमेटेड होता था। अच्छा, इस दिन सीपीएम सबसे ऊपर हो गया, मींस यहाँ पे मैंने कोई नए कैंपस लॉन्च करेगा, राइट। He gave me a tracking tool to optimize the campaign because Facebook obviously सही डेटा नहीं दिखाता है। मैंने पूछा कि सर ये सब तो ठीक है, I'll save half of my time, but how to optimize? कि मैं ऑप्टिमाइज करने के लिए जाऊं, cause आप 5 करोड़ रुपए महीने का ब्रांड बना रहे हो और आप क्रेजी मनी स्पेंड कर रहे हो, तो टाइम भी तो बहुत ज्यादा होगा। हर दिन नई एड्स लॉन्च करनी है, हर दिन कुछ ना कुछ करना है, हर दिन एड्स को बंद करना है। एंड ही टोल्ड मी कि विशाल सिर्फ 10 मिनट लगता है, जस्ट fucking 10 minutes, एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट डू द ऑप्टिमाइजेशन, माय टीम डज। मैंने कहा कैसे?
एंड ही वाज लाइक सिंपल सी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है, सिंपल सा एक गूगल शीट का डैशबोर्ड है. इफ यू लेट इमोशंस टेक ओवर व्हाइल टर्निंग ऑन एंड ऑफ द कैंपेन, यू आर रिस्किंग योर ब्रांड्स ग्रोथ. ये ना इमोशनलेस होना चाहिए. इट्स लाइक ये नंबर चाहिए, ये नंबर आ रहे, चलता रहेगा, नहीं आ रहे तो बंद होगा. वेरी सिंपल. सो ही गेव मी दैट डैशबोर्ड, राइट. ऑप्टिमाइजेशन डैशबोर्ड कहते हैं इसको, कि जो याद है अभी रिमेंबर वी टोल्ड अबाउट इतना सीपीएम सीपीसी होना चाहिए, इतना कन्वर्जन रेट होना चाहिए, इतने का एवरेज ऑर्डर वैल्यू होना चाहिए, राइट. तो वो सारे नंबर को जो वी जस्ट हैव टू फीड द डेटा इनटू द गूगल शीट एंड वी जस्ट हैव टू प्रेस द एंटर. व्हाट हैपेंड सागर, क्या हो गया? स्क्रीन इज विजिबल. अच्छा, स्क्रीन इज नॉट पॉज गाइस. स्क्रीन अभी वहीं पे है लग्जरी, मैं अभी दिखाऊंगा दिखाऊंगा वो सारी चीजें दिखाऊंगा, डोंट वरी. आई थिंक योर स्ट्रीक, कैन यू शेयर दैट? Customer, अच्छा बहुत सारे मैसेजेस आ गए. I'm sorry guys. Simple clarity, easy to scale, customer journey. We will try to build same metrics also. This feeling you will get only to work with the agency. अच्छा, I think your screen is stuck. नहीं नहीं नहीं. Account stuck off a pain point. Cool cool. अच्छा, I'm so sorry guys. मैं थोड़ा सा बताने में चला गया था. I'm sorry. ठीक है. So back at the thing strategy वाला, कि yeah he told me कि आपको सब कुछ automate करना है. I'll cut down the at the main part. सब कुछ automate करो. यूज गूगल शीट्स सिर्फ ऑप्टिमाइज करने के लिए, जो कि डैशबोर्ड है. डोंट डाउनलोड मैनुअली द डेटा, इट्स फकिंग 2025. उसको सब कुछ ऑटोमेट करो. सी दी ग्राफ्स, सी कहाँ पे स्पाइक आ रहा है, एंड थिंक, बिकॉज एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर इट्स नॉट जस्ट मीडिया बाइंग पार्ट, यू नीड टू बी वेरी वेरी क्रिएटिव. यार किस टाइप के क्रिएटिव्स बनाने हैं, है ना. सो वी इंटीग्रेटेड दैट, एवरीथिंग वाज स्मूथ, एंड ही टोल्ड मी कि सिर्फ 10 मिनट लगेंगे. एक ट्रेनिंग मॉड्यूल चाहिए कि डेटा डाउनलोड कैसे करके ऑप्टिमाइज कैसे करना है. सिंपल. सी दी अर्ली मेट्रिक्स एंड यू कैन स्केल. किसी भी अपने किसी जूनियर को दे दो, उनको बोलो. अरे बच्चा, दैट टाइम आई वाज नॉट द इंटर्न. इसके बाद इंटर्न से ऊपर तुम किया था मेरे को काम, कि ऑप्टिमाइज करना है, राइट. एंड व्हाट वाज द 3 स्टेप फॉर्मूला टू ऑप्टिमाइज एंड स्केल योर ब्रांड? फर्स्ट, यू नीड टू ऑटोमेट योर डेटा. स्टॉप यूजिंग फकिंग गूगल शीट्स, बंद कर देना आज के बाद. ये गूगल शीट्स की जगह लुकर स्टूडियो. स्टार्ट यूजिंग लुकर स्टूडियो. इट विल हैव एवरीथिंग. मंथ वाइज डेटा बनाओ, वीक वाइज डेटा बनाओ, डे वाइज डेटा बनाओ, एंड समथिंग मेन मेट्रिक्स. सीपीएम क्या है, सीपीसी क्या चल रहा है, कितना स्पेंड हुआ है, कितना रोएस हुआ है, राइट. कॉस्ट एक्विजिशन क्या है, इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स. डोंट ट्राई टू गेट इनटू अ लॉट ऑफ मेट्रिक्स. होगा. कैन यू स्पेल इट? लुकर स्टूडियो, LOOKER स्टूडियो, लुकर स्टूडियो. दिस इज समथिंग. अच्छा, ये पर्सनल हमने खुद का क्रिएट किया, खुद की एजेंसी के लिए भी. डेटा स्टूडियो, यस, सागर इज राइट. डेटा स्टूडियो इज अ वेरी ओल्ड नेम, अब तो अपडेट हो गया. थैंक्स सचिन, थैंक्स फॉर शेयरिंग द लिंक एज वेल. ठीक है. सो यू नीड टू ऑटोमेट एवरीथिंग टू सेव योर टाइम. Second, this is a great tool, Tracosity. Tracosity will actually show you the right data. Okay. This is something that I have been using recently. I'm sure if you are at working at a very advanced level, जिसमें ट्रिपल वेल और कॉमेटली आता है, हाइरोज आता है, राइट. एक बहुत सिंपल सा, बहुत क्विक बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ फॉर अ लेमन. लेट्स से इफ यू आर स्पेंडिंग 10 lakhs a month on Facebook ads and Google ads कंबाइन करके, ठीक है. फेसबुक कहता है कि मैं 100 ऑर्डर्स लेके आया हूँ. Sardul, yeah, Hyros is excellent, crazy, but they charge crazy money. So coming back to this, कि let's say Facebook कहता है मैं 10 ऑर्डर्स लेके आऊँ, गूगल कहता है मैं 10 ऑर्डर्स लेके आऊँ, टोटल ऑर्डर्स 20. बट जब आप जाके शॉपिफाई पे देखोगे, शॉपिफाई ऑर्डर्स आए 15. क्वेश्चन इज 5 ऑर्डर्स ज्यादा कौन बता रहा है, फेसबुक या गूगल? एंड हाउ वुड यू नो इट? एंड व्हाट, लेट्स से फेसबुक जो 10 ऑर्डर्स ला रहा है उसमें से 50% तो आरटी हो जा रहे हैं, 50% तो कैंसिल हो जा रहे हैं, राइट. So you need to make right decision making. Velocity also give a report on WhatsApp. That is also great. Yeah. So Tracosity is something which is dirt cheap, but quality is top notch. So this is being owned by Sanidhya Baveja. He's a friend of mine. Not promoting. कोई मेरा कोई commission वगैरह नहीं है. To be honest, right? You can just use it. Just tell them कि विशाल ने बताया था. कुछ discount ऐसे मिल जाएगा. I don't have any affiliate link और कुछ भी, है ना. So use Tracosity to see right data कि कहाँ से actual orders आ रहे हैं, कहाँ से अच्छे orders आ रहे हैं. If you want, I can just show you Tracosity का एक बार. Just give me a sec. मैं दिखा दूँ कैसे लगता है. Can you see my screen? So you can see this is how Tracosity looks. कि this is one of the dashboard. 1.39 का ROAS. ये चल रहा है. कितना रेवेन्यू हुआ है,
कितने का ROAS चल रहा है, क्या CPA चल रहा है, कितना रेवेन्यू, ठीक है। एंड दिस इज द कस्टमर जर्नी एज वेल। अ लॉट ऑफ टाइम पीपल व्हाट दे डू, लेट्स से कोई 15,000 का प्रोडक्ट है, वो 4 दिन एड ऑन करते हैं और बंद कर देते हैं, देन दे थिंक यार सेल तो आई नहीं। व्हाट इफ जो 15,000 का प्रोडक्ट है, लोगों के लिए मे बी उसको 15 दिन या 1 महीना लगता है डिसाइड करने की खरीदना है कि नहीं खरीदना, राइट। सो दिस एक्चुअली शोज कि इस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए 84% ऑफ द ऑर्डर्स उसी दिन आते हैं जिस दिन लोग ऐड देखते हैं। And कुछ लोग हैं, दैट इज जस्ट 1%, जो 15 से 30 दिन लेते हैं ऑर्डर खरीदने के लिए, राइट। तो हाउ यू कैन एक्चुअली डिसाइड कि कितने टाइम तक कैंपेन्स को चलाना है, राइट। क्रेजी क्रेजी इनसाइट, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें, प्लस दे हैव इंटीग्रेटेड एआई एज वेल, बट इट इज क्रेजी, राइट। अच्छा, उस पर बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसेंगे बिकॉज बहुत डिटेल हो जाएगा, ठीक है। सो या लोकल स्टूडियो पे आप लोगों को ऑटोमेट करना है, ट्रैकोसिटी यूज करना है इफ यू वांट टू यूज इट। थर्ड इज दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन डैशबोर्ड। इसके अंदर व्हाट वी डू, जस्ट वी डाउनलोड द डेटा लास्ट 3 days 7 days, वी फीड इट, वी पुट द नंबर। कौन सा नंबर? हमारा ब्रेक इवन रॉस, कि मेरे को 2.6 का, 2.5 का, 3 का ब्रेक इवन रॉस चाहिए। टेल मी विच कैंपेन्स टू पॉज, वो अपने आप आपको बता देगा। तो ये करने में सिर्फ, इफ यू आर न्यू 10 minutes, इफ यू आर ओल्ड 5 minutes मैक्स, एंड यू आर डन। कौन सा कैंपेन में कितना बजट बढ़ाना है, दैट इज डन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस। सो टू बी ऑनेस्ट, जहां मेरे को 18 घंटे लगते थे, आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ मच फ्री टाइम फॉर मी एंड माय फैमिली एंड एवरीथिंग, राइट। सो कहाँ चले गए, हाँ। So yeah, this is what we got after doing this. 1.62 CR in July, 1st July से 31st July, 1.62 CR. We increased the ad spend. We started कितना था, 3 लाख से we spent it close to 17 lakhs or something. Sorry, step 3 was what? Step 3 was basically optimization dashboard. वो खुद से create कर रखा हमने यार, साइना। वो अभी हम ऐसे सेल तो नहीं कर सकते, मे बी इन फ्यूचर कुछ होगा तो मैं कम्युनिटी में फॉर श्योर ऐड कर दूंगा, राइट। So this is what we got. एक दिन की सेल 71,000, क्रेजी मनी। वी मेड 3 million a day as well. इतना easy था स्केल करना, इतना easy था स्केल करना। Pen down these steps in community. For sure, I'll do it. So this brings to the end. So if you are a marketer, so now you don't have to chase the empty promises, right? कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू ट्राई टू गिव गारंटीज यू विल attract clients, right? So you can join our community. I'll be sharing the link of the community. एक और एक community हमारी, एक WhatsApp पे community तो है ही, प्रियांशु will share the link in the chat. Also I'm sharing this community जहाँ पे we'll be adding more international people as well. So in future we'll be inviting Sanidhya on the webinars, workshops, right? So you can learn some crazy Facebook shit. And apart from this, we'll be also inviting people who are overseas, some of the crazy marketers, right? So you can join this community as well. And do we have recording? Not sure, Shardul, not sure. So it's like you guys were already here, so you guys get it. Okay. Now I'm about to sell something. Okay. So if you guys want to drop, you can. This was all about the value, and this is especially for the e-commerce brand owners and somewhat for the marketers as well, right? That a real growth offer for you. Okay. मैं बेचने वाला हूँ यहाँ पे. I know you can sniff it out, right? So you got two choices. Option number one, do it yourself. जो भी अभी तक आप करते आए हो, spend months learning and testing, risk wasting your ad budget, figure out strategies on your own, slow and unpredictable growth. ये आप कर सकते हो खुद से, जो आप अभी तक करते आ रहे हो। फिर से एक और एक ब्लंडर कर रखा है, ऑप्शन 1 की जगह ऑप्शन 1 ही लिखा हुआ है। आई विल फॉरवर्ड माय टीम एज वेल, ठीक है। लेट अस हैंडल इट, दैट प्रूवन स्ट्रेटजीज दैट वर्क, expert team optimizing for you, no guesswork, just results, scale faster with confidence. This is for the e-commerce brand owners, right? So हम करेंगे क्या? If you're an e-commerce brand owner and if you think that Vishal, can you do same thing for us? Can you help our brand to grow 1 CR a month? We can, right? So what you're gonna get, हम क्या क्या करेंगे basically? First, it's all about the ad setup and targeting strategy. If we are agency के लिए we can obviously see, just listen to this offer. I'll be talking, last में Q&A होगा, will address all the questions, ठीक है। ad setup and targeting strategy जो भी हमारे playbooks के अंदर है वो हम सब implement करेंगे। if you get it done from an expert agency, right, जो top notch media buyers होते हैं, they will charge roughly around 55,000, जिसके अंदर
कस्टमाइज एड कैंपेन्स बनते हैं कि बेस्ट आपके कस्टमर पर्सोना के हिसाब से लोग पहुंचे। टारगेटेड ऑडियंस पर्सोनास होते हैं कि अच्छा कौन कौन से ऑडियंस को टेस्ट करना है हमें, राइट। तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस कि किस किस हिसाब से कैंपेन को स्ट्रक्चर करना है, किस किस हिसाब से टारगेटिंग करनी है, ये सारी चीजें, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज क्रिएटिव स्ट्रेटजी इन विजुअल्स, कि क्रिएटिव को एडिट भी हम लोग करेंगे, शूट तो ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा। इफ यू वांट अस टू शूट उसके लिए अलग से चार्जेस है, बट सम व्हाट इट विल बी चार्ज 90,000। एक अच्छा वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, जहाँ पे प्रॉपर क्रिएटिव स्ट्रेटेजिस्ट भी बैठा हुआ है, वीडियो एडिटर भी बैठा है, ग्राफिक डिजाइनर बैठा है, जो तीनों मिलकर ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं एंड फिगर आउट कर रहे हैं कि अच्छा इस टाइप की एड्स कुछ हमें शूट करनी चाहिए टू कैच द अटेंशन एंड एवरीथिंग, राइट। हाई कन्वर्टिंग विजुअल्स होने चाहिए, वेरी सिंपल। ए बी टेस्टिंग कैसे करनी है कि अच्छा इस टाइप का क्रिएटिव काम कर रहा है या इस टाइप की हेडिंग काम कर रही है, वो सारी चीजें हमारी टीम करती है। तो ये टॉप नॉच अगर आप देखोगे तो क्लोज टू 55 और 90,000, क्लोज टू 1,45,000 a top notch agency will charge, ठीक है। विजुअल एनालिसिस टू मैक्सिमाइज ऑडियंस इम्पैक्ट, ये सारी चीज थोड़ा टेक्निकल लिख दिया है, बट आई होप यू गेट इट, राइट। सारे काम हम करते हैं। सो या एड सेटअप, टारगेटिंग स्ट्रेटजी, एंड ये प्लेबुक से जो भी हमने अभी तक सीखा है, जो भी ब्रांड्स पे हमने लगाया है, सारी चीजें है ना, ये सब मिलेगा। प्लस ऑप्टिमाइज कैसे करना है एंड कॉपी राइटिंग। एक अच्छा कॉपी राइटर, एक अच्छा मीडिया बैच ऑप्टिमाइज करेगा, वो आपको 70,000 से आसपास चार्ज करेगा अ मंथ, राइट। एंड ये 70,000 ये नहीं कि इफ यू आर स्पेंडिंग 10,000 अ मंथ एड्स पे, क्रेजी मनी, 3 लाख 5 लाख 10 लाख स्पेंड करते हो, दे विल चार्ज 70,000 टू ऑप्टिमाइज एंड कॉपी राइटिंग, राइट। तो ऑनगोइंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है वो सब हम करते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजिक स्केलिंग करनी है ताकि आप पैसे लूज ना करो अपने फर्स्ट ऑर्डर पे, यू डोंट मेक लॉसेस। अच्छी कॉपी राइटिंग, परसेसिव कॉपी राइटिंग, ये सारी चीजें, ठीक है। एंड देयर इज अ बोनस, जो रिपोर्टिंग होती है, एडवांस रिपोर्टिंग, जो लोकल स्टूडियो दिखाया, दैट वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, सो इट्स लाइक 10%। वी हैव सम क्रेजी एडवांस रिपोर्टिंग, क्रेजी ऐसी रिपोर्टिंग, मतलब इट्स लाइक पीपल हु आर नर्ड्स कि यार रिपोर्ट देखनी है, यू लव इट, ठीक है। सो दैट्स अ बोनस, 10,000 की होती है, सो वी गोना गिव इट फॉर फ्री। So total is, this is something, if you spend crazy money on ads but not able to become profitable, not able to go to 1 CR a month, this is what you have to pay to an agency, 2,25,000, एक अच्छा खासा टैलेंट हायर करने के लिए, राइट। बट यू कैन जस्ट गेट इट फॉर 50,000 प्लस 2% ऑफ द रेवेन्यू। वी गोना गिव दिस एवरीथिंग इफ यू आर अ brand owner, right, for 50,000 plus 2% of the revenue that we're gonna charge. So it's like retainer plus there is a performance piece. बट श्योर यू माइट बी थिंकिंग कि यार विशाल 50,000 तो ज्यादा है, स्टार्ट नहीं कर सकते। सो पीपल हु स्टे टिल द एंड, राइट, आई एम श्योर अगर आप जाके 1-to-1 कॉल पे हमारे साथ आते हो, सो प्राइसेस विल बी वेरी डिफरेंट, इट कुड वेरी फ्रॉम 50K to 1 lakh as well, right? But just because you guys stayed till the end, and for the first 10 people who will register for this 1-to-1 call with us, ठीक है, I'm gonna give you a better offer. We're gonna not charge 50K, we're gonna not charge 40K, ठीक है, we're gonna not charge 30K। ये सारी की सारी चीजें आई कैन गिव इट टू यू, बट फॉर द 10 पीपल, फॉर द फर्स्ट 10 पीपल, जस्ट फॉर 25K and plus 2% of the revenue. This is what we're gonna charge, right? And you're gonna get everything, everything. भाई, आई एम नॉट रनिंग एनी एजेंसी, कैन यू टीच अस? अच्छा, अभी Q&A आप पे आते हैं, ठीक है। So when you are ready, here's what you need to do next and get access to everything we talked about, right? जब आपको लगे this is what you'll get, this is what you're gonna charge, just to make sure that you guys are serious. If you're a marketer as well, right? If you want to learn this, कि विशाल मेरे को ना e-commerce सीखनी है, तो वो mentorship अलग है, consulting अलग है, right? That is different. If you want to have a word with me, personally me on a one-to-one call, that how I can help your brand, maybe your client's brand, okay? So it's a 97 rupees to book a call. I won't be taking free calls. You just have to book, and the services, if you want to take our services, that's going to be 25,000 plus 2% of the revenue. That's what we're going to charge. So what to expect when you come to the call? I'll understand about your brand. मैं चीजें समझूंगा, देखूंगा either we can help it or not, क्या रोड मैप रहेगा, क्या सारी चीजें रहेंगी। देन वी गोना टॉक अबाउट कि अच्छा एक्चुअल में हम स्केल कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, राइट। प्राइजेस इज दिस, इट कुड वेरी, बट रफली इट विल बी फ्रॉम दिस टू दिस, राइट, ठीक है। सो यू कैन जस्ट स्केल इट, एंड नाउ द सेशन इज ओपन फॉर द Q&A. आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस वन बाय वन, एंड प्लीज गाइस थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चंस डालना, ठीक है। लास्ट टाइम इट वाज वेरी हैप्पजार्ड, ठीक है। सो सागर सुरेश सेड इफ वी आर एजेंसी, ठीक है। सो आई ऑफर कंसल्टेंसी एज वेल, ठीक है। सो कंसल्टेंसी में एज इन इफ यू आर अ एजेंसी ओनर,
Remember, I told I have two companies, Performance Solutions and the Growth Flow. Performance Solution is basically helping service providers. If you think how we can get more clients, I help with that as well. If you think कि विशाल I need to consult my clients, but मैं चाहता हूँ कि मैं ही फेस रहूँ, so I can be at the backstage. I can help you understand कि हम ये चीजें करते हैं, ठीक है? And I'll explain. Then you can take those words and give it to your clients as well. ठीक है? Consulting भी होती है. Sainath says, "Bhai, I'm not running any agency. Can you teach us also?" Teach us also, as in Sainath, if you could just let me know क्या सीखना है आपको, then I could think about it कि clients कैसे लाने हैं या फिर e-commerce में scale कैसे करना है, Facebook ads कैसे सीखना है. So that's a different altogether. If you want to have a word, if you want to get into things, just scan this code, book कर लो आप call, and I'll talk to you personally कि किस हिसाब से I can help. White space निकालेंगे, looking for partner performance engineer for clients or any additional work. Sure, Sardul, we can do this for sure. Just for the partnering as well, what you could do, just give me a sec. Can you follow the same steps for our client you're already working with? Yeah, for sure, you can use the same steps. Priyanshu, just share your number, okay? Or share Parul's number in the chat and pin it, okay? Just do that. Shardul, you can copy that number. That's my EA, and you could reach out to her. She will explain and collect all the requirements. And based on that, we could obviously have a call apart from this one-to-one call. ठीक है, जिसके अंदर we could discuss कि कैसे क्या कर सकते हैं. अच्छा, also Priyanshu, share the LinkedIn profile as well. So people, guys, you can also follow me on LinkedIn. I post some crazy free content over there as well. आप वो भी देख सकते हो, ठीक है? And join our WhatsApp community if you're not in the WhatsApp community. I don't see the RTU percentage calculation for cash on delivery orders. How do you usually manage it to grow the brand? It's a big challenge. It is actually a big challenge, Rajan. So that's why we have a tool, Tracocity. जब ट्रैकोसिटी पे आप डालोगे तो यू कैन इजीली सी कि कितने ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं, कितने ऑर्डर्स पे रिफंड हुआ है. सो यू कैन सी कि अच्छा जो रिफंड वाले ऑर्डर्स आ रहे हैं कोई स्पेसिफिक कैंपेन बुला रहा है. बिकॉज व्हाट वी हैव सीन कि जब हम पैन इंडिया चलाते हैं एड्स, तो बिहार वगैरह से ना ज्यादा ऑर्डर्स आने लग जाते हैं, ठीक, जो फेक होते हैं, अभी डिलीवरी नहीं होती वहाँ पे. सो वी फिगर आउट कि अच्छा ये पर्टिकुलर कैंपेन है जो बिहार में ज्यादा टारगेट कर रहा है, सो लेट्स पॉज दिस. तो वो ट्रैकोसिटी आपकी हेल्प कर देगा. कैन वी फॉलो द सेम स्टेप्स एज आवर क्लाइंट्स वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद? एब्सोल्युटली Sagar, this is what very few people know what we just talked about. After this webinar, if you'll go and see ads, बाकी सारे लोगों की, they'll just promising we will do 10x, 20x, and you'll be laughing on those ads. कि यार क्यों ही promote कर रहे हैं? They attract the worst clients, right? तो ये हो जाएगा. Second, Vishal, just a professional question: is it a good to work for marketing agency or just for one brand and handle the marketing? Silent depends. See, if you want to learn a lot of stuff, go for the marketing agency. If you want to have an easy life, go for one brand. Because personally I like to explore new things, try hard things. So obviously I chose marketing agency, and that's why I'm running marketing agency and consulting agency as well. So I love doing this thing. So yeah, for me personally, marketing agency is good. But if you think that I want to have easy life, I want to work 3-4 hours a day, that's it. So one brand is good for you. We have connected. Thanks. Calendar link is given. We are having issues scaling many of our brands. Sachin, we can definitely connect over a call. You can scan this link, and we can obviously have a word around this. Ki kya kya missing hai, right? Based on this, if you think ki you just need consulting, or you just need ki let's say 50% आपने brands हमें दे दिए, right? And we are just working on that. So we can work on that as well. That is also okay. Can you help with ad rejections? Sunny, depends कि एड रिजेक्शन कॉज. पर्सनली मैं दूर रहता हूँ थोड़ा सा गैम्बलिंग वाले और वो जो बेटिंग एप्स होती है. दे पे क्रेजी मनी. ये जनरली आपको दुबई वगैरह से ज्यादा ब्रांड्स मिलेंगे, बट आई वुड सजेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम देम. ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है वो, लॉन्ग टर्म नहीं है, राइट? तो एड रिजेक्शन वहाँ ज्यादा होती हैं. एंड थोड़ा सा हेल्थ केयर में उतना अच्छा हाथ है नहीं मेरा. नॉट गुड इन दैट. सो या, हेल्थ केयर में वहाँ भी प्रॉब्लम है. बट जनरली मेजोरिटी आई हैव नेवर सीन एड रिजेक्शन अभी तक. तो एक आग आती है तो आई नीड नो कि अच्छा ये लोग कुछ वर्ड्स हैं तो चेंज करना है. आर यू वर्किंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स? यस, यस वी आर. एनी मोर क्वेश्चंस गाइस?
What about AI innovations? Will it affect more in ads managing and all? How is it going to be in 5 to 6 years? Yeah, see, to be honest, AI won't change a lot of things. It just, if you know how to use AI, that will help you to save your time. You can't just let AI do everything, right? अगर मैं बोलूँ कि AI को कि AI will have to create everything, all the presentation and everything, they can do it, but how impactful that would be? क्वेश्चन वही है ना, कितना इम्पैक्टफुल होगा? क्योंकि लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, आई कैन राइट एनीथिंग, एनी एक्स वाई जी स्टफ, बट इम्पैक्टफुल कितना है? दैट कम्स थ्रू एक्सपीरियंस, दैट कम्स थ्रू नॉलेज। जो भी मैंने सीखा है, AI must be knowing it, but when to use it, how to use it, that is something only human can decide. I mean, AI can decide, but impactful impact उतना नहीं रहता, ठीक है? Sagar is saying I will book the call and discuss. I'm looking forward to see you on the call, Sagar. Sachin, sure, thanks for connect soon regarding the same. Love to see fellow performers in the D2C market is growing and spreading awareness in India. Likewise, Sachin, I'm not sure if you're running some ad or something. I guess we are connected on the LinkedIn. Maybe you're that Sachin or not. I'm not sure, but yeah, I think automation other paid channels you teach on this automation. So I have a crazy webinar that we do, not very frequently, but about that lead generation funnel where crazy automations are there about the email drip sequence, WhatsApp drip sequence. If you'll notice when you bought the product, digital product, वहाँ पे थोड़े बहुत messages रहते हैं कभी कभार, but everything is automated. Nobody sends you the digital product जो sales for breakdowns है, कोई बैठ के बैठ भेजता नहीं है. It's all automated. बहुत सारी चीजें हमने already कर रखी है अपनी agencies में. It's crazy. Is there any way, Vishal, we can get the 4 ebooks you have shared? Chandan, this is not for sale. अभी के लिए तो I feel. अच्छा guys, what do you think? People who are staying till the end, what do you think? तो CPM, CPC, AOV, CR की जो playbooks है, how much we should charge? Because it has been almost 2021 से 4 साल तो हो गए इसको क्रिएट करते करते, उसमें चीजें ऐड करते करते, and it's gonna answer everything जो भी आपके डाउट है. What do you think? अब ये मत बोलना कि फ्री फ्री हो जाए या फिर 1000 रुपए में हो जाए. Tell me if that playbook helps you to actually double your ROAS or help you to scale to 1 CR a month. What do you think? How much it would be worth it? Triple line for three, 1500 for all. It's good value if you implement. Absolutely. If you implement, it's gonna generate crazy value for sure. और ये एक ब्रांड से साथ नहीं, we have generated a 1 CR for so many brands. I would highly recommend you to watch जो recent podcast है with Sayyam Bajaj. 20 days में 1 CR. Crazy. And same playbooks को यूज करते हैं, मेरी टीम भी सेम playbooks को यूज करते हैं. ट्रिपल लाइन फॉर 3, इंटरेस्टिंग. कुछ चीजें तो आई फील साईनाथ एंड सागर को आई कैन गिव इट. कुछ कुछ चीजें मैं ऐसे ही दे दूंगा. व्हाट एल्स? वी कांट प्राइस द एक्सपीरियंस, यू कैन शेयर इट soon, very soon. Any more questions, guys? Almost 2 hours, 1 hour, 1 hour 42 minutes. It was a crazy session, to be honest. Any more questions, guys? Or we could wind up if you want. Last 6 minutes left. I see lots of posts on LinkedIn. I have got quick response. Have you used any automation there? Not really, Sagar. What we do basically, we have our team who takes care of it, right? So Parul, Neha, Priyanshu, so they usually takes care of the LinkedIn part. Ujjwal is also there. So my team usually looks after the comments and everything. And by the way, I've automated the process using the humans, not the automation. So we have some SOPs and everything. They create the content on my behalf. I just give them the approval and they post it. C&W Foods Private Limited saying 2499 for all four. Yeah, probably 2499 for all. We can do that. We can do that.
I'll see. Because see, I have something crazy to create, right? It's not just about these four playbooks, but something actually implementable, right? I've got responses so quickly, great team. A couple of them are here, so yeah, I really appreciate whatever they are doing so far. I got a mail for 3.30, but it was started early. You got a mail for 3:30. I'm not sure. So I would suggest highly to be added in a group. Acha guys, if you're not added in a WhatsApp community, we usually have one monthly Q&A sessions, right? Where it's just Q&A session, nothing webinar, nothing, no workshop, just Q&A. Where I'll be actually deep diving into your ad accounts and explaining what all things you could implement, right? So you can join that group as well. And there is a proper paid community as well for that is for 997 rupees per month. अच्छा बहुत ज़्यादा sell कर रहा हूँ लग रहा है. So let's keep it, forget it. Can we create a performance team and work together, scale brands if your goal, if our goal matches? For sure, Sagar. I'm sure. I'm not sure if you have booked the call or something. Book the call and I'll see you and discuss that how we can collaborate or maybe scale the brands. कर सकते हैं, for sure. No problem. C and W Foods Private Limited. I'm not sure if you own an e-com brand. Your name sounds like. So if you have got any value, do let us know. Just last question. How all people who say these 10, 20 ROAS, they speak so good like your feel whatever they say, feel good to good at communication. I didn't get it. Just last question. As they speak so good, like your feel whatever they say, feel good to good at communication. समझ नहीं आ रहा मेरे को. Are you saying कि it makes the prospects feel good about themselves? Is it? I feel what I have seen. I mean, there are two sides of the decision making, right? One is emotional, and second is logical. And human beings are usually emotional decision makers. They decide emotionally, then they justify it logically, right? Yeah, they talk good. Obviously, they talk good, but people decide emotionally, right? To give an example, let's say if you like, you're just starting and don't yet know whether you will take this up as an assignment or not. Your call landing page mentioned one needs to have 3 lakhs worth of performance marketing budget, which we currently don't have. What is the marketing budget that you have? Are you guys doing just performance or full funnel like email retention to in growth flow? Chandan, we do retention in email as well, but that depends what is the ad spend. Because obviously 25K is the performance marketing part, right? And obviously 25K plus 2% of the revenue will not help you to scale to 1 CR a month. That's going to give a push. हो जाएगा. 50K. 50K it's less, I would say, because obviously if you're spending 50K and you get 25K आप हमें दोगे तो it's gonna be tough. What I would suggest, whatever you have learned so far, implement those things by yourself. You can apply for that one-to-one consultation call and understand what all things that customized can be done for you. And obviously try to get it done from your end. Once you have at least 1 lakh of the ad spend a month, then I would suggest to work with us, right? Coming back to sign up question, people tend to believe 10 20 works, right? I was giving you an example. People decide emotionally first, as in let's say if you like Ferrari, है ना, even though you know कि mileage issue बहुत सारी चीजें हैं, है ना, but you'll say just because you feel good once you own Ferrari, you know it's about the status and everything, right? So you want that. That's the desire, and you decide emotionally कि यार ये मेरे को चाहिए. And once you see, okay, there is a 50% off on Ferrari just for one day, and if you have that amount of money, you'll buy it. And then you'll decide logically कि यार 50% discount था इसलिए लिया, otherwise वो चाहिए नहीं था. But deep down, you want that Ferrari because you feel good about owning a Ferrari, right? So people decide emotionally,
And once you learn this, people decide emotionally and justify logically. You can create anything in marketing. That's what I have learned. Let's have a discussion tomorrow, I would call. All right, Sagar, I'll see you. Looking forward to connect with you. Let me know if we can have buy these 4 playbooks from you. It might help us set up the platform later on. You can come and help us scale. Not planning to sell right now because obviously we have a partner in the company as well. His name is Umang Arora and he's double my age. So he's a mentor as well, business coach as well, and he owns 50%. So obviously I can't make decisions like this. So we have nothing to sell about anything which I mentioned. Maybe in future, maybe in couple of webinars, or maybe we'll find it one day because obviously CPM, CPC playbooks are good enough, but they can only be understood by internal team. I have to structure it in a way that any people just see the playbook and understand it, right? So it's like a training that we have given for 7 days as well to the people who are working with us. But in future, for sure, I'll give it. Thanks. I guess time रुक गया है 2 मिनट 18 सेकंड पे. So are we done with the questions? I can see we have a couple of people still. Marketing professor. थोड़ा मेरा S का word. I know that's bad. 11 square feet is there. Abhinandan, flat in Nagpur. Interesting. Rajan, Sardul. Any more questions, guys? Or we'll wind up? Because the timer यहीं पे रुक गया है. अब ये नहीं चलेगा मुझे लग रहा है. Looks like we are done. So yeah, let's wind up. Thank you so much, guys. Thank you so much for showing up at this webinar. It was great, and I appreciate that you're investing your time here with me because obviously that was the most valuable thing that you have. Can guide us in setting up the automate reports. Many people struggle in the stage of scaling. We do it, Sagar. We do it. If obviously once we become collaborators, obviously we will help you with a couple of stuff, right? just just to be active in the WhatsApp community, guys. I mean, our team is very much active. If you ask any question, we'll for sure help you out, right? So yeah, thank you so much for showing up at the webinar. Thank you so much for investing your time with me. That was the most valuable thing that you have, and looking forward to see you scale your brand. And I'm sure one day you'll scale your brand or your client's brand, and you'll share somewhere that you learned these secret strategies by me, and I'll be much more happy about it. So yeah, thank you so much for joining in, and that's it. I'm out.